Sir, my Hindi and Urdu is not good. Is it okay? Can I ask in English? Yeah, 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 yeah. Yeah, sir. Thank you for the opportunity. Sir, how much do you will affect in the upcoming World Cup? This is my first question. And second question is, which Sena countries has a balanced unit? Balanced? Unit, complete, bowling No, and no. batting. Okay. I think Australia have because they they had used the Indian conditions well in the past, but England will definitely struggle when it comes to bowling in India, and their past history is also shown us that issue. And South Africa is looking very good and very deep. This is the deepest side. Deepest means गहराई वाली बात इसलिए की है मैंने इसमें कि साउथ अफ्रीकन स्क्वाड looks a most balanced to me because they have a left arm pacer who creates angle, and then they have a couple of very good right arm pacers backed up by very good left arm Chinaman, and backed up by a very good finger spinner Keshav Maharaj. So they have got everything. And when it comes to top order, they have the services of uh, experienced Quinton de Kock, and then open with their most enthusiastic character in world cricket these days, Temba Bavuma. Then they have Aidan Markram and Rassi Vander Dusen, who is on number 3 in ICC ranking these days. Then they have the powerhouse of like Klaassen and David Miller, and for good extent, Marco Jensen has no mug with the bat either, as he just showed us in fifth ODI. He scored 48 or 49 in 23 balls. So that wise, I think South Africa is looking very, very good, very, very good. But the only problem they will also can face, they will face the issue when they compete with a team like India, even Pakistan, on low bounce wickets, because South Africans always like bouncy tracks or a good competitive bouncy tracks, which even bouncy track. I think the term even is more suitable. Even tracks uh, takes the better out of him, and their bowler also like when starts bouncing, and especially their spinners are used to take wickets on bouncy tracks, so they might struggle on venues like Chennai, Delhi. So I think, but I'll beg them to surprise every expert across the globe, and they will qualify. They will qualify to the semis this time. But Kagiso Rabata has to do. Uh, he should come good. He should come good for South Yeah, Africa because he's not supporting Ngidi. I'm seeing him yeah, since many NGD years. these days Ngidi look is doing so much. Yeah, the force, yeah, unlikely force. NGD these days looks a more unlikely dangerous. force, but his length was immaculate as far as one day cricket is concerned. So Yeah, yeah. I've seen his just bowling around 10 to 12 meter area and got extra bounce from there, which make him extremely dangerous for any top order batter. But Rabada, who has bit more pacey than Lungi Ngidi, but he always fails to uh, bowl channel stuff or bowl consistently on most occasions. He is not disciplined enough. But Lungi Ngidi is far more disciplined than the other South Africans. And also Marco Jensen, when he is on song, he's a very, very good length bowler. Length is very important in India because all the coming teams across the globe, especially the those European nations,
all the Sena countries struggle while touring India, not recently, but had in past also. Uh, they always struggles. They always struggles in India because they haven't found a proper length to bowl on. That's why they have conceded lots of runs. That's why I still seeing many flaws in English bowling. English batting, Yeah, as yes, far sir. as their Sorry batting to order interrupt, is sir. concerned, they are extremely dangerous batting lineup, especially the inclusion of Ben Stokes. After the inclusion of Ben Stokes in ODI setup, they are look extremely dangerous. I really feel for Jason Roy because he's one of my favorites. Sometimes a guy who can just bash, go bang, bang, and bang with no technique at all. You might love him because of his attitude. Really like Jason Roy as a cricketer, but sadly, I just heard with someone that Jason Roy lost his place in the final 15, and Harry Brook had been included in the final 15 member squad. So that's really disappointing. But maybe it's time for a young generation and it's time for Harry Brook to deliver the goods for his nation because they have taken a big risk because Harry Brook wasn't successful in Indian Premier League either. Kavya Maran took him in the at the auction. She really likes him as a cricketer, but just a single century and nothing. And Sunrisers was nowhere. They were down and out with Brook, Markram, and all these superstars in their rank. So maybe, hopefully, they will come good. But do not ever write New Zealand's or Kane Williamson's 11 in crunch and mega events because he is a fantastic bloke. He never bite, he never speaks anything foolish or rubbish or overrated statements, underrated statements. But by far, he is still, to me, he is still a fabulous captain. So he have a very good team as well. Daryl Mitchell, Devin Conway, Williamson himself, the dasher Glenn Phillips, and the new sensation, the guy who played for Hong Kong initially in 2021 T20 World Cup. He represents Hong Kong. I'm talking about the new sensation Mark Chapman, who delivered the goods against us in Pakistan and go downtown and took Haris, Shaheen, and Naseem apart, Ehsanullah apart, more lively bowlers in world cricket apart in that particular T20 series. So I am really looking forward for Mark Chapman. And those three sides looks a very balanced squad, but their bowlers have to find a right length. In India, there are many issues, more than once, more than one. Because let's suppose if England facing Asian side in Chennai, so their fast bowler needs to bowl fuller. Because in Chennai, if you bowl back of the length with full complete speed around 138, 140, so batsman suppose to be on top. But if you played in somewhere around a pitch like a fast wicket, which is the faster one? Uh, साथ भाई मुझे कोई पिच Dharmashala. और Dharmashala. बेंगलुरु की पिच जो है Bangalore. But if you Dharmashala. played at you Dharamshala or if you played at Bangalore, so Bangalore wicket is a very placid track. So at Bangalore, sometimes you can surprise any batsman with a bouncer or a back of the length fast delivery. But when it comes to Chennai, so Chennai, that was a hit me ball. That will be a hit me ball. So definitely they have to figure it out their lengths
They are bowling lengths on at different venues. So definitely, I think these three sides can deliver the goods for their nations. Thank you. Next one. Sir, my first question Yes, regarding the Mani. dew factor. Yeah. Do How you much the factor? dew factor will impact the World Cup because it's in winter and mostly the matches are day and night matches. या ये तो मुझे कब से लग रहा है यार, डे एंड नाइट मैचेस ये करवाते ही क्यों है? अगर ड्यू आएगा, डेफिनेटली ड्यू विल हेल्प टीम हु वर चेजिंग, तो उसी को हेल्प मिलती है। बट डेफिनेटली ड्यू के लिए अब आदी हो गई है दुनिया। सो एनी टीम बैट फर्स्ट, ओ एनी टीम, हाँ, एनी टीम बैटिंग फर्स्ट विल गो फॉर 40 एक्स्ट्रा रन्स बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर लेटर ऑन। सिंपल एज दैट। 40 रन ज्यादा करें, बस यही हल है इसका, और कोई टेक्निकल हल तो है नहीं मानी। Sir, can I नेक्स्ट ask वन। one more question? Only last या question, श्योर sir. श्योर 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 श्योर। Sir, for me, this is my understanding of cricket. I see Pat Cummins and Kane Williamson as most balanced captains, and rest fall behind them. How much is right? It is right, sir. Pat Cummins always hinted that he likes Test cricket more than white ball cricket. But yeah, you are right. With some extent, Pat Cummins is a very good captain because he knows how to achieve achieve with limited resources. I have seen him in a past as well, that he always achieves, and he never shied to take a gamble that anyone who is not out on good 80 of 60 balls. He every now and then he used to introduce a spin or reintroduce his spinner against him, that settle guy, and invite him to go downtown. He gave the ball to Travis Head, and he has several options like this. But Kane Williamson, I think केन विलियमसन की जो क्लास है एज कैप्टन, वो जरा दो स्टेप ऊपर है। बट ही इज कमिंग बैक फ्रॉम अ वेरी बिग इंजरी, so we will definitely see how it goes, how he goes in the upcoming World Cup, or maybe he might rested himself in the games against some lesser opposition. Might be he will take rest when they will play the likes of Netherlands or Zimbabwe to nahi hai, or likes of Bangladesh even, but they cannot afford to rest him out when they will play a game against Afghanistan, because Afghanistan have some serious bowlers, some serious batters also these days. People like Rahmanullah Gurbaz. ओ कमाल है यार, क्या गेम चेंज किया उसने अपना। ही वॉज जस्ट अ बैशर, जस्ट अ स्लॉगर अ ईयर बैक, एंड विद इन अ ईयर ये होती है क्लासिफिकेशन। एक्सीलेंट, मैग्निफिसेंट क्लासिफिकेशन इन हिज गेम। he has just recently scored a big 151 against us, against Pakistan, when we had bowlers like we had the services of Shaheen, Haris, and Naseem in the same game, backed up by Shadab Khan. He is very experienced too, but Rahmanullah Gurbaz scored that massive 151. So watch out for Afghanistan. He will surprise one or two in the upcoming World Cup. That's my belief. And Even I that am also let's see. thinking same, sir. Afghanistan will beat some bigger team. स्पेशली This is स्पेशली देयर कपल ऑफ गेम्स, मुझे दो गेम्स का तो याद है कि उनके चेन्नई में, सो माइट बी दे विल चैलेंज any opposition, especially at Chennai, because Chennai is the venue who suited Afghanistan more than India, because सारी चीजें हैं ना उनके पास। चेन्नई वाली स्लो पिच पे खेलने के आदी, स्लो पिच पे बॉलिंग कराने के आदी। So if it's turning or if it's gripping, then watch out for Aghwan boys. Thank you, sir.
So nice to talk Thank you with so you. much, sir. Thank you. Yeah, thank you. थैंक यू। रोहित शर्मा की इस टूर्नामेंट में बॉडी लैंग्वेज देखो, रोहित शर्मा का कभी कोई मसला नहीं था, सिर्फ मसला ये था कि वो फिट नहीं था, तो वो हर चीज अपनी शक्ल पे ले रहा था। इस सीरीज में, इस एशिया कप में रोहित शर्मा का डाइवे लगाना, रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंट चेहरा जो मिसिंग था कप्तान बनने के बाद से, मैंने वो देखकर 10 दिन या 8 दिन पहले ही कह दिया था टीवी पे कि इंडिया एशिया कप तो जीत गया है, वॉच आउट फॉर द वर्ल्ड कप। कि अब आप वर्ल्ड कप में देखें, डेफिनेटली यार तोते की फाल नहीं है कि इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप, लेकिन बताना ये चाह रहा हूं कि इंडिया इंडिया के अंदर हॉट फेवरेट हो गया इस टूर्नामेंट को जीतने से। नहीं, इंडिया की पूरी बॉलिंग आ गई, सिराज अकेला बेचारा कंधों पर लेके घूम रहा था बोझ। अब जब नेपाल के अगेंस्ट उसे 62 रन बने, लोग समझे ही नहीं वो क्या पिच है, सिराज पहली दफा श्रीलंका में जोर लगा रहा है, उसको श्रीलंका को समझने तो दो। नहीं, सिराज कोई बॉलर है, ये तो स्पिन बॉलर है, देखो कैसी स्पिन कराई है आज उसने। मैं तो दुआ करता हूं ऐसी स्पिन तुम्हारे वाले भी सीख लें भाई, ऐसी ही स्पिन करा लें यार। मुझे नहीं चाहिए वर्ल्ड क्लास बॉलिंग भाई, ऐसी स्पिन करा लें जैसी सिराज कराता है स्पिन, मुझे स्पिन ही अच्छी लगेगी फिर। रोहित की और कोहली की बॉन्डिंग है, ये बता रही है कि अब इंडिया बहुत बहुत टफ होके खेलेगा। असल में विराट कोहली पहले इंटरवीन नहीं कर रहा था, कुछ बोलना नहीं चाह रहा था रोहित की कप्तानी में, लेकिन अब शायद कुछ ड्रेसिंग रूम में बात बात हुई है, कुछ इस तरह से हुआ है। भाई देखो यार, बात है कि सिराज की बात तो मैं करता ही हूँ, आज से नहीं करता, आप भी जानते होंगे, पुराने वाले लोग तो जानते हैं कि भाई सिराज को जब मैंने पहली बार नोटिस किया था तो मैंने कहा था कि ये बंदा बॉल हिलाता है और ब्रेव बंदा है। अच्छा, ये उस वक्त लेग स्टंप पे चौके खा लेता था, लेकिन नोटिसेबल बात ये थी कि ये लगा रहता था विकेट्स पर कि यार मैं बोल्ड कर दूं या एलबीडब्ल्यू कर दूं। देखें, जिस आदमी के दिमाग में विकेट लेने का जरिया बोल्ड और एलबीडब्ल्यू होगा ना, वो बड़ा डेडली होगा। अब मैं तो आज भी हंस रहा हूं, आज भी कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रीलंकन बैट्समैन की इंटेंट नहीं थी। ओ मेरे भाई, बॉल किस तरह से स्विंग हो रहा है अवे, वो उनसे रन्स नहीं बन रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह बॉल को टच करें तो बल्ला खोल रहे हैं। वो कौन से कोई ब्रेडमैन है टेक्निक में कि वो बैट कौन लेके जाता है इतनी दूर कदम अगर बॉल स्विंग हो रहा हो, सब आउट हो जाते हैं। ये मुझे बड़ा गलत लगता है यार, बहुत गलत लगता है, ये गलत घटिया बिल्कुल। यार यहाँ पे ये जो है, हाँ एक बात है भाई, तालियां बजा लें, किसी को बुरा ना लगे, मैं थोड़ा सा सार्कास्टिक वे में कह रहा हूँ, तालियां बजा लें। वो भी हमारी ही प्रिडिक्शन थी कि साउथ अफ्रीका बाउंस बैक करेगा और ये मिचेल मार्च जीतेगा नहीं सीरीज, क्योंकि ये पेट भर के झूठ बोल रहा है कि मैं फाइनल खेलूंगा। ये खेल लेगा फाइनल, ये 2-0 जीतते जीतते 3-2 हार गया, तो इससे पाकिस्तान की रैंकिंग तो बच गई। इंडिया और पाकिस्तान के रेटिंग पॉइंट सेम हो गए, 115 115, लेकिन क्योंकि वो पुराने नंबर 1 थे तो वो नंबर 1 है। तो भाई पाकिस्तान ने कहा कि ट्रॉफी आप रख लें और नंबर 1 हम रख लेते हैं। तो वही स्टेट पैडिंग का बेहतरीन मुजाहरा हुआ है माजरत के साथ हमारी क्रिकेट टीम का, कि आप रैंकिंग में होने के बावजूद आपने सुपर 4 में चौथे नंबर पे फिनिश किया, बिकॉज बांग्लादेश इंडिया को हरा गई। ऐसी है। अच्छा वासे भाई, यहाँ पे मतलब कोई और बोले उससे पहले कोई और अगर आपसे बात करना चाहता है, मैं एक दो बातें ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले सिराज के बारे में जो वासे हम्म। भाई ने बताया, क्योंकि मैं पुराना लिसनर हूँ तो मुझे पता है कि वासे भाई ने सिराज के बारे में जो रेटिंग दी है, ये आफ्टर इंटरनेशनल डेब्यू नहीं दी। वासे भाई उसको इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में देख चुके हैं और वहां से उन्होंने बताया था कि ये बॉलर जो है ये फ्यूचर में जाके इंडिया को लॉन्गर फॉर्मेट में, लॉन्गर टेस्ट क्रिकेट जो है सर्व करेगा। वहां पे सर्व करेगा, हाँ क्योंकि हाँ। रणजी ट्रॉफी की। और हाँ एक बात, वाइड बॉल में उसने मुझे भी चौंकाया। मैं वाइड बॉल में भी कहता था कि वो अच्छा है, पर मुझे लगता था कि रेड बॉल, लेकिन डेफिनेटली जिसको टेस्ट क्रिकेट में आउट करना आ जाए तो वाइड बॉल पे भी करता है। जैसे मोहम्मद शामी ने कहा था कि भाई टेस्ट मैच वाली लेंथ पे बॉल करने से T20 में भी विकेट्स मिलती हैं, क्योंकि हर बल्लेबाज की इतनी रेंज नहीं होती और बॉल अगर हिल रहा हो। सवाल ये पैदा होता है कि आपने दिन में बॉलिंग कराई, आपका बॉल इतना कभी क्यों नहीं हिला मेरे भाई। एक मार्को जी, एंसन ने आज एक परफॉर्मेंस दिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑलराउंडर मार्को एंसन ने दे दी ना। हाँ
कभी तो देगा, कब से पाल रहे हो हाँ, उसको। उसका स्टैट्स मतलब अभी ओडीआई उसके 10-12 हो चुके हैं। टेस्ट में उसके जी जी। स्टैट्स अच्छे हैं। 10 टेस्ट में उसने 44 विकेट लिए। उसका वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, मतलब वो आईपीएल में इंडिया के पिचेस पे खेल चुका है। और केशव महाराज, अच्छा ठीक है। साउथ अफ्रीका का है वो। उसका एज ए स्पिनर, जी जी। ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, कितना तो फायदा होगा अफ्रीका के लिए। ये और आपने मुझे मुझे बताया है कि केशव महाराज नहीं, साउथ अफ्रीका का स्पिनर है। नहीं नहीं, उसका कितना फायदा होगा, मतलब उसका कितना अच्छा, थ्रेट समझ होगा। गया सर। वैसे सर क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। माई कंडोलेंसेस टू इफी एंड हिज फैमिली। एनीवेज, आज ये मैच से तो अनरिलेटेड है, जी बट आपकी क्या थॉट्स हैं जो अप एंड कमिंग बॉलर था, लास्ट 1-2 साल में आया भी मैचेस में, उमरान मलिक को जी लेकर? जी। सर मेरी थॉट उसको आईपीएल में लेकर भी यही थी, मैं टाइम टू टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करता रहा हूँ। मेरी थॉट्स ये हैं कि सर ही इज गुड, ही इज स्पेसी, बट 4 ओवर की जब वो क्रिकेट खेला आईपीएल में तो उसने ज्यादा पेस निकाला, बट उसको चैनल अब तक समझ नहीं आया, उसको अब तक अपनी स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ समझ में नहीं आई कि उसको बॉल कहाँ करना है। बेसिकली समटाइम्स ही वॉज टू शॉर्ट, और ज्यादातर वो शॉर्ट और वाइड स्टफ कर देता है। जब वो आगे गेन करता है तो समटाइम्स वो बिल्कुल फुल कर देता है। अच्छा, ये जो 145 के बॉलर्स होते हैं, इनका आप समझिएगा एक मामला, ये तेज बहुत होते हैं ना, तो अगर इनका गेंद हाफ वॉली भी नहीं है और एक फ्लैट विकेट पे जिसपे मूवमेंट नहीं है, उस पर इनका गेंद अगर कोई थोड़ा सा खिंचा हुआ भी है लेकिन आगे का लेंथ है, तो इनको आप थ्रू द लाइन भी हिट मार देते हैं। ठीक है, यानी वॉली नहीं है, आप अपनी जगह पे खड़े खड़े बल्ला चलाते हैं तो वो थ्रू द लाइन अच्छा कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज उनका पेस अच्छा होता है। यू हैव टू मिडिल इट बस। तो उमरान को थोड़ी सी चालाकियां सीखनी पड़ेंगी, बट मैं उसको बहुत हाई रेट नहीं करता। मेरी अपनी थिंकिंग है, मे भी गलत हो सकती है। मैंने कभी भी उसको वो वाला रैंक नहीं दिया। अगर आप वीडियोस भी सुनते होंगे, मैं कहता हूँ ही इज गुड, बट बहुत काम करने की जरूरत है, फ्यूचर में बहुत काम करने की जरूरत है। हाँ, एक गलती हुई, अगर ये डिसाइडेड था कि उमरान को खिलाएंगे तो फिर उसको किसी बड़ी सीरीज में 4 से 5 मैच लगातार मिलने चाहिए थे, ऐसा भी नहीं हुआ। तो आई थिंक राइट नाउ ड्राविड एंड रोहित इज नॉट दैट इंटरेस्टेड टू मेक हिम अ गुड बॉलर। मे बी के अदर ऑप्शंस भी हैं उनके पास, तो अभी वो देखना नहीं चाहते। जिस तरह देखें, वर्ल्ड कप में अगर एक पेसर और कोई होता तो हम सब जानते हैं वो प्रसिद्ध कृष्णा होता, क्योंकि इनिशियली वो अनाउंस भी हुआ एशिया कप में, और आई लाइक दैट गाय। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, प्रसिद्ध कृष्णा अभी अनफिट हुआ था, फिर फिट हुआ है। बांग्लादेश की परफॉर्मेंस को साइड पर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी उसको मालूम है कि वो वर्ल्ड कप में नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा मेरी बुक में नई बॉल बहुत अच्छी करता है, और उसका जो लेंथ है नए बॉल पे, वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों को ट्रबल दे सकता है, लेंथ। अब वो उसको एक्सपोजर मिलने की बात है, कितना और कितनी जल्दी मिलेगा आगे जाके, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे मोहम्मद शामी तो इंडिया की क्रिकेट से जाते हुए नजर आते हैं। जी, मेरा सवाल आपसे ये था, दो सवाल है मेरा। जी जी। आपसे पहला सवाल है कि मतलब पाकिस्तान के जो भी फिलहाल के कप्तान है बाबर आजम, जी जी। तो आपने भी अपने कई वीडियोस में मेंशन किया है कि कुछ स्किल्स क्रिकेट में आप पहले से सीख के नहीं आते, कुछ कुछ आप खेलते खेलते सीखते हो। तो हमने देखा है काफी टाइम की बाबर आजम क्रूशियल मोमेंट्स में अपने कप्तानी को लेकर सीरियस नहीं होते, चूक कर लेते हैं। तो आपकी राय जानना चाहूंगा, उस फील्ड प्लेसमेंट में जब श्रीलंका को एक बॉल में 2 रन चाहिए थे, तो जनरली हम देखते हैं कि जब ऐसा करंट सिचुएशन आता है तो तब अपने सारे फील्डर्स ऊपर होते हैं, या फिर एक मिड विकेट, या फिर एक लॉन्ग लॉन्ग ऑफ, या फिर लॉन्ग ऑन आगे होता है। तो बाबर आजम ने क्लोज फील्ड उस टाइम पे नहीं लगाया, उन्होंने ओपन फील्ड लगा दिया, जिसके कारण श्रीलंका ने सिर्फ टैप करके 2 रन ले लिया। ये मेरा पहला सवाल है। और जी दूसरा सवाल आपसे ये है कि फिलहाल के क्रिकेट क्रिकेट को देखते हुए जी। आपको जी। अपकमिंग टीम यंगस्टर्स के ऊपर बेस करके कौन सा टीम अगले 2-3 साल में सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छे सवाल हैं सर आपके, हाईली अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए, थैंक पहला यू, सवाल थैंक का तो यू। शो में भी थोड़ा जिक्र हो गया होगा, कल शायद मैंने किया था। देखिए, जमान खान एक राउंड आर्म सिलिंगी सॉर्ट ऑफ बॉलर है, उसका यॉर्कर बॉल हमेशा लेफ्टी से बाहर निकलेगा। अब बिल्कुल। डिपेंड करता है कि अगर वो लेग को टारगेट कर रहा है तो वो मिडिल पे फिनिश करेगा, अगर वो हम्म। मिडिल और ऑफ को टारगेट कर रहा है तो ऑफ के बाहर जाएगा।
देखिए हम्म पहली बात तो इसमें ये थी कि फील्ड ऊपर से पहले कि आपने थर्ड मैन शाहीन को अंदर रख लिया। हालांकि हम्म असलंका के तो आउटसाइड एज लगने के चांसेस थे डेफिनेटली। जमान बैट बॉल तो कोई बॉलर नहीं चाहता ना, राउंड द लेग्स बोल्ड कर दे। ये कभी भी हम्म प्लानिंग नहीं होती बॉलर की, अगर हो जाए कभी ऐसा तो हो जाए। शिव नारायण चंदर पॉल एक ऐसा बल्लेबाज था वेस्ट इंडीज का कि वो बहुत शफल करता था। उसको कुछ लोग टारगेट करते थे। 96 में एक बार कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज में वकार यूनिस ने उसको राउंड द लेग्स बोल्ड किया टारगेट करके। इसी हम्म तरह उसको शोएब अख्तर ने भी आउट किया एक बार, मुझे याद पड़ रहा है इसी तरह। तो लोग उसको देखते थे लेग स्टंप। देखिए जमान ने बॉल गिराना मिडिल और ऑफ पे ही था, सही है। तो अब आपको थर्ड हम्म मैन पीछे रखना या ऊपर ले आना तो क्राइम था, ये तो सबको पता है। दूसरी बात, ये जो शॉर्ट फाइन अंदर आया था, ये मोहम्मद रिजवान के कहने से आया था। आप पूरी तरह शायद देख ना सके हो सर, ये मोहम्मद रिजवान की फरमाइश पर आया था। उनका प्लान कुछ और था, बाबर कह रहे थे प्लान कुछ और था, उसने एग्जीक्यूट कुछ और कर दिया। आई थिंक प्लान ये था कि वो शॉर्ट बॉल करेगा, यॉर्कर पर नहीं जाएगा, बैक ऑफ द लेंथ। लेकिन होता क्या है कि जमान खान ने कौन से पाकिस्तान के लिए, या लिस्ट ए में भी उसके 7 मैच हैं सिर्फ, उसने वनडे क्रिकेट नहीं खेली। जो उसको बेस्ट आता है, यॉर्कर आता है, या आगे ही स्लोअर वन डाल देता है, वो आगे ही बिल्कुल मुंह पे कि छक्का मारने की लालच में बैट्समैन मिस टाइम कर जाए, तो उसने वो स्लोअर वन छोड़ दी बॉल। तो ये गलती कप्तान की ज्यादा थी कि भाई जमान खान पर उतना प्रेशर ना डालो। एक तो पहली बात कि वो भले जितनी भी डेथ बॉलिंग का स्पेशलिस्ट हो, शाहीन शाह अफरीदी तो मेरी नजर में वहीं एक्सपोज हो गए कि जब बाबर को सेकंड लास्ट ओवर उन्हें देकर बचाना पड़ा और लास्ट ओवर उन्होंने जमान खान साहब के लिए रख लिया। तो ये भी एक अजीब सी बात थी। लेकिन शाहीन वहां पे शायद विकेट्स भी जरूरी थी, उसको तो मैं मार्जिन दे सकता हूँ फैसले को। लेकिन इस फैसले को, शॉर्ट मिड विकेट होनी चाहिए थी बिल्कुल मुंह पे, शॉर्ट स्क्वायर मुंह पर होना चाहिए था, फाइन लेग पीछे ही होना चाहिए था। आप जमान पर ये प्रेशर डालते ही नहीं, आप कहते दोबारा यॉर्कर करो जो तुम्हारे खास है, मिडिल पे करो, कोशिश करो एलबीडब्ल्यू हो जाए, बोल्ड हो जाए। तो अगर वो थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे भी निकलता, थर्ड मैन पीछे होता, सीधा बिल्कुल सीधा, तो वो आपको डबल रन पे रन आउट होने के 90% मौका मिल जाता आपको ना। आसान नहीं होता थर्ड मैन पे सीध में कि आप डबल भाग जाओ फौरन से। तो ये ब्लंडर था, ये मिस्टेक नहीं थी, ये ब्लंडर था। और जो आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें मैं भी हाईलाइट करता हूँ कि लोग सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। लेकिन बॉस कप्तानी ना, याद रखिए, वो मैं मजाक में कल कह रहा था ना कि सरफराज पैदा हुआ तो लोगों ने कहा आपके यहाँ कप्तान पैदा हुआ है, तो वो मजाक तो था। आपको हंसी भी आई होगी कि धोनी पैदा हुआ, लोगों ने कहा आपके यहाँ कप्तान पैदा हुआ है। कैप्टनसी या लीडरशिप होती पैदाइशी है। अब जब कोई इंसान क्रिकेट में आता है तो ये समझना होता है कि इज ही अ लीडर। इसी तरह रोहित शर्मा पर भी ये दबाव रहा पिछले 1 डेढ़ साल से कि तुम ट्रॉफी जितवाते हो, तुम लीडर हो भाई, तुमने आईपीएल की सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीत के दी हुई है मुंबई को। हालांकि मेरा मुंबई की जीतों में एक राय है कि मुंबई ने जितनी भी ट्रॉफियां जीती हैं, मुंबई की जो आउटफिट होती थी, मेरा ख्याल से वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा देगी। भाई एक टीम में कौन कौन नहीं होता था, मलिंगा, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, तो वर्ल्ड की तो बेस्ट बॉलिंग वहीं पर थी। इसी तरह 2 3 सीजन में उनकी बैटिंग ऐसी होती थी, मतलब नीचे पोलार्ड है तो रोहित शर्मा है, तो फिर आप देखें तो हार्दिक पांड्या है ऑलराउंडर्स में, फिर ईशान किशन भी डैशिंग था। थोड़ा खराब हुआ था 1 साल से, पर अब देखें वो इसलिए खराब हुआ था कि उसे इंडिया में आके रन्स बनाने थे। अब वो इंडिया के लिए रन्स बनाना इवेंचुअली शुरू हो गया। तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा, मजाक जरूर होता है। इन सब लड़कों पर इन्वेस्टमेंट है, इन सबको एक्सपोजर मिला है आईपीएल में बहुत। तो बाबर के तो भाई ब्लंडर है। आपका दूसरा सवाल जरा दोबारा दोहरा दीजिएगा। हाँ आ गया, याद आ गया। आपका दूसरा सवाल ये था कि दौरे हाजिर की नहीं, फ्यूचर की कौन सी टीम अच्छी बनती हुई नजर आती है। बॉस ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलराउंडर्स तो आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर में कोई खास चीज नहीं आ रही, बट ट्रेवस हेड ने वो जगह पकड़ ली है आने वाले 4 5 साल के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बट आई मस्ट से लोगों को शायद थोड़ा सा अजीब लगेगा, इंडिया और साउथ अफ्रीका। मुझे ये 2 आउटफिट्स ऐसी लगती हैं कि ये मुझे फ्यूचरिस्टिक अगर सोच में कहूँ, ये मुझे बहुत कमाल की टीमें लग रही हैं आने वाले वक्तों में। उसका रीजन ये है, जो बनेंगी, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपने शामिल कर लिए हैं। जैसे कि देखें, कोहली और रोहित को अभी मैं हटा रहा हूं क्योंकि इनकी क्रिकेट अब कम है ना, आप फ्यूचर पूछ रहे हैं, कम है भले जितनी ज्यादा है। मैं तो विराट कोहली का फिटनेस के साथ 2027 का वर्ल्ड कप भी देखता हूं, अगर मुझसे अभी पूछें। लेकिन ये एक अदर स्टोरी है। देखिए शुभमन गिल है, ईशान किशन है, सूर्या
2-3 साल 4 साल खेल सकता है। नहीं भी खेले तो श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, मास्टर ब्लास्टर वापस आ जाएगा। उसके बाद पांड्या है जो खेलेंगे क्रिकेट अभी आगे, अभी यंग है वो। उसके बाद बॉलिंग में सिराज आ गया है, प्रसिद्ध कृष्णा पीछे है, फिर वही जो आप लोगों ने नाम लिया उमरान वगैरह, लाभ लाभ और मोहसिन मोहसिन खान बड़ा अच्छा बॉलर है जो खेलता है लखनऊ के लिए। और मोहसिन खान अगर पूरा फिट है तो उसे भी इंडिया बहुत जल्दी ना खिलाएं, लेकिन उस पर नजर रखें। तो ये फ्यूचर में मुझे जो इंडिया से खेलते हुए भी बॉलर, उमरान मलिक भी उसमें शामिल है। इसी तरह स्पिन में रवि बिश्नोई है, कुलदीप के आगे अभी बहुत साल की क्रिकेट है। तो देखें, मैं तो आपको अक्षर पटेल है कि अगर जडेजा नाकाम भी है तो अक्षर आपको हमेशा बताता है। कभी भी मैंने अक्षर को खाली हाथ जाते हुए नहीं देखा है। खाली हाथ से मुराद 25 30 35, वो कोई भी विकेट दो, वो भी तो पहली बार उतरता है उस विकेट पे। वो विकेट पड़ता है और करता है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट बहुत है। मैं अक्षर को एज बैट्समैन बड़ा रेट करता हूँ, सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, रोज ही बता रहा होता हूँ अक्षर के बारे में कि बस उसकी बदकिस्मती है, खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है कि वो भारत में, अगर वो हाँ, न्यूजीलैंड इवन और इवन होता आपने एक वो बार नंबर बात चार आपने पांच पे सुने खेल कि के वो पांच 4 पे नंबर 100 पे कर खेलते चुका थे। होता। सॉरी, मेरी बात कंप्लीट होने दें जरा। वो नंबर 4-5 पे खेल कर ना सर, वो आराम से अभी तक 4 5 6 7 100 कर चुका होता वनडे क्रिकेट में। वासे भाई चलिए मैं आपसे साथ बात करूं। क्वेश्चन ये करूंगा कि सबसे पहले तो हम पाकिस्तान के, आपने जिस तरह ड्रेसिंग रूम पे बात की, उस ड्रेसिंग रूम से के हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि हम पिछले 3 साल से, जब से बाबर आजम कैप्टन बने हमारे, उस जी टाइम से हम ये सुन रहे हैं कि इनके अंडर जो टीम आई है वो एक यूनिट और एक जल होके खेलती है। इवन कि हमने बाबर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एटीट्यूड होते हैं, वो कभी जी कभी जो किसी जर्नलिस्ट का जो है वो रीजनेबल क्वेश्चन भी जो है वो एक अजीब सा जवाब दे के वो जो है वो उसको टाल देते हैं, और फिर सोशल मीडिया पे जो है वो लड़के वो उन उन जर्नलिस्ट का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि यार देखो बाबर ने हमें कैसे जवाब दिया। तो ऐसा क्यों हुआ और इसकी क्या वजह है कि बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले जो है ड्रेसिंग रूम से ये खबरें आनी शुरू हो गई कि यार ड्रेसिंग रूम में टूट फूट का शिकार है, और ड्रेसिंग रूम में जो है वो बाबर ने गुस्सा झगड़ा हो दिखाया। गया। या जी, ये पहले पिछले 3 साल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? या तो इन चीजों को छुपाया गया, ये थी इनको छुपाया गया, या फिर नहीं थी तो ये अभी क्यों हुई? और सेकंडली मेरा एक क्वेश्चन है, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन वासिफ भाई, हमारा फास्ट बॉलिंग फ्यूचर क्या है? मैं सिर्फ एशिया कप तो चले खत्म हो गया और नसीम शाह जो है वो लॉन्ग स्पेल के लिए इंजर्ड हो गया, जो कि हमारा एक्स फैक्टर पेसर था, जिसको मैं इवन के शाहीन और अपना हारिस रऊफ से भी ऊपर रेट करता हूँ, जस्ट बिकॉज वो एक्स फैक्टर है। तो अब हमारा फास्ट बॉलिंग फ्यूचर नॉट ओनली वर्ल्ड कप बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन सीरीज है, क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तो ज्यादा टूर करता नहीं है, लेकिन इस बार हम जिस लाइनअप से जा रहे हैं उसमें तो वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है कि हम तो वहां पे जो है वो इनिंग इनिंग की डिफीट से हारेंगे, क्योंकि वो तो हर इनिंग में 500 स्कोर कर सकते हैं, हमारे पास कोई जेन्युइन पेसर नहीं है। तो आप वैसे भाई इसमें थोड़ा गाइड करेंगे पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलिंग इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकता है? हमें क्या अपने डोमेस्टिक चेंजेस में, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस लाने की जरूरत है? कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया में इंप्रूव करने की जरूरत है? हम कैसे अपने जो है वो इन बॉलर्स को करेंगे इंजरी प्रोन बॉलर ना हो और परफॉर्मेंस दे सकें? थैंक यू यार वसीम। देखें, साथ भाई, अब बात यह है कि ये वर्ल्ड कप का तो सोल्यूशन कुछ नहीं है अभी। ये तो बहुत लंबी बात है कि अब आप अगले डोमेस्टिक सीजन में फास्ट बॉलर्स को हाईलाइट करें, फास्ट बॉलर्स पर नजर रखें। होता क्या आया था पहले कि ये ग्रीन विकेट्स देते थे, 2-3 सीजन पीछे चले जाएं तो एक लड़का हमारा पाकिस्तान खेल गया था, असद अली, मिसबा का खास था। ही वॉज गुड, गुड, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए वो वाला तो नहीं था, क्योंकि वो ग्रीन टॉप पिचेस पर जो है वो आउट कर लेता था विथ स्पेस 135 समथिंग अराउंड। तो यकीनन अब जब ग्रीन विकेट आपको मिलेगी ना तो आपका बॉल खुद ही कुछ ना कुछ बात करता है पिच पर गिरने के बाद। तो अब होता यह है कि जब आप इस तरह से कर लेते हैं तो फिर मसला खराब होना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली देखें, आप इंडिया की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर मिसाल तो ऐसी बनती है ना कि आप इंडिया की बात करते हैं, बुमराह नहीं था तो ऐसा तो नहीं है, बुमराह नहीं था तो इंडिया जो है वो श्रीलंका से हारना शुरू हो गई थी या इंडिया किसी और टीम से हारना शुरू हो गई थी। इंडिया के पास सिराज था, सिराज पर भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी। तो सिराज ने बहुत सारी सीरीजेज में, जितनी सीरीजेज अभी तक सिराज वनडे की भी खेला, न्यूजीलैंड वाली मुझे याद है, एक साउथ अफ्रीका वाली याद है, सिराज ने उसमें बता दिया कि भाई अगर बुमराह नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं इंडिया का इस वक्त प्रीमियर बॉलर हूं, मैं संभालूंगा ये जिम्मेदारी। तो आप जो बात कर रहे हैं तो अब आप देखें ना कि नसीम के अनफिट होने पे वो जितना भी बॉलर है अब तक, आधा तीतर आधा बटेर,
तो आप देखें उसमें स्किल तो बहुत ऊपर की है नसीम की, लेकिन बॉस वही बात है कि नसीम के पीछे लिस्ट है कितनी है, आपको ये भी देखना होगा नसीम की वनडे की जो है फिटनेस पर कितना काम किया गया है। क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान के ये तीनों पेसर्स, अगर मैं 3 लगातार मैचेस में इन्हें 10-10 ओवर करते हुए देखता हूं तो मुझे चौथे में इनका एनर्जी लेवल कम लगता है भाई, माजरत के साथ। तो यकीनन आपको अब डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रैपिडली फास्ट बॉलर्स ढूंढने होंगे। ऑफ स्पिनर्स तो आपने खत्म कर दिए, अब आप फास्ट बॉलर्स के चक्कर में, तो अब आप देखेंगे क्या होता है आपका और किस तरह से होता है। बहरहाल दुआ करें। और ये जो ड्रेसिंग रूम की कहानी है साथ भाई, ये तो चलती है, ये गेम पे से नजर हटाने के लिए गेम की गई है, ये गेम पर से नजर हटाने के लिए गेम की गई है। क्योंकि ठीक है सर। आज शाहीन चीखा है, कल कोई और चीखेगा। क्योंकि क्या वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जो लाहौर कलंदर्स को 2 टाइटल जितवा रहा है, क्या वो क्रिकेट को इतना नहीं समझता कि पाकिस्तान का असल मसला आपका कप्तान ये खुद है बाबर आजम। ना ये रन करता है, कोई अच्छी टीम देख के सेट होके आउट हो जाता है, उसी विकेट पे उन बेचारों को बच्चे मार रहे होते हैं। तो हर बार तो वो लोग गलत बॉल नहीं कर रहे होंगे ना, इसका मतलब तुम्हारा ही बैटिंग सेट ऑफ स्किल्स, आपकी बैटिंग में कमी है ना यार। वासे भाई नमस्कार। जी कैसे हैं जायसवाल भाई? भैया जी आपसे कुछ पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछें सर, आपसे बात करने ही बैठा हूँ। क्रिकेट वगैरह ये तो चलता रहेगा सर। मेरा तो आपसे एक तो ये फिर पूछना है क्या कि पूछ आप रहे हैं? मैं कोई सब्जी तरकारी बनाने की तरकीब थोड़ी बताता हूँ सर। एक मैं तो ये कि मतलब आप वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आ रहे हैं आप? नहीं यार, अभी तक तो नहीं आ रहे यार। अच्छा। तो दूसरा हाँ, आज जैसन रॉय के लिए उसको हैरी ब्रूक को अंदर लिया है। हैरी ब्रूक के लिए जस्ट जैसन रॉय को बाहर किया है। अच्छा किया ठीक है। सही सही मेरा किया है। यार मेरा फेवरेट प्लेयर तो है जेसन रॉय, लेकिन हम्म। कंसिस्टेंट ऑफ लेट इतना नहीं है। बहरहाल तजुर्बेकार बहुत है, और हैरी ब्रूक फ्यूचर है इंग्लैंड का। अच्छा ये फैसला ऐसा है कि इसमें पसंद नापसंद पे बात हो सकती है। तो आई थिंक जेसन रॉय का तजुर्बा ऐसा था कि इस वर्ल्ड कप में उसे होना जरूर चाहिए था, मेरी राय तो ये है। अगर एक बोल्ड डिसीजन लिया था हैरी ब्रूक का तो उस पर आप परसिस्ट करते, इसका मतलब कि आपने खुद दिखा दिया कि हमारा ये डिसीजन गलत था, खराब था, या समथिंग लाइक दिस। जो बेखौफ क्रिकेट की जो बात करते एशिया हैं। एशिया कप पे बोले ना, इंडिया जो जीता है उस पे बोले, इस एशिया कप की कारकर्दगी पे कुछ हो वो भी बोले। एशिया कप तो सर खत्म हो गया, इसमें क्या है, अब जो भी खत्म होगा आज वर्ल्ड। हुआ ही नहीं ना असल में। एक सच में बताऊं, वो मजे तो लग पत, गए होंगे जो पत, फॉरेन, आज तो पता नहीं कौन कौन क्रिकेट पे बोल रहा होगा कि भाई जीत गया, भाई इतना ही बोलना काफी होगा। लेकिन मजा ये मजा है कि नहीं वो आया। मैच ही पूरा, सब मिला के मैच ही 2 घंटे नहीं हुआ भाई, वो T20 का भी मैच नहीं हो सका। सर मजा ही नहीं आया बिल्कुल। ये तो अब तो वर्ल्ड हाँ कप होगा ना, उसमें ही पता चलेगा क्या करते जी, हैं वर्ल्ड कप में। चलें अब किसी और भाई का सवाल लेते हैं। गानव जी भाई बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप। Very good evening, Vasu bhai. I am from गुड Lucknow, इवनिंग। India. ओहो, इफ्फी भाई के इलाके के आदमी हैं आप, हाँ, और मैं लखनऊ के। एपी भाई का बहुत बड़ा फैन भी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ऑनेस्ट क्रिकेट फैन को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इमोशनल हैं और पब्लिक वाइज है बेसिकली वो खुद भी जी। कहते हैं मैं पब्लिक वाइज हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज कि लाइक बहुत टाइम आप लोगों ने, जब मुझे लगता है कि 2016 टी20 वर्ल्ड कप से आप लोग एनालिसिस कर रहे थे और उसके बाद लाइक द लास्ट टी20 वर्ल्ड कप वाज समवेयर कि आप लोगों ने ऐसे हिट किया व्हेन नहीं अभी सब लोग नहीं जानने लगे नहीं आपको। नहीं यार, जी 2016 से तो नहीं कर रहे थे, और जी यूट्यूब पे तो कतई नहीं कर रहे थे। हम पहले जी यूट्यूब पर एक प्लेटफॉर्म था, वो भी हमारे एक भाई हैं उनका, हम उस पर करते थे ऑफ एंड ऑन। तो उस पर हुआ ये था कि उस पर मैंने और इफ्फी भाई ने एक साथ भी मिलके किया, तो उस दौरान 3-4 महीने बड़ी कंटिन्यूटी बनी उसकी। हाँ मैं उससे पहले 2018, 19, 20 में टेलीविजन करता था यहाँ ना, आज टीवी पर, न्यूज वन पर, और एक दो चैनल थे, बट ज्यादातर मैं इनके उस पर होता था। इनसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी रहा आज टीवी से। बाकी 2019 की आई थिंक मैंने पीएसएल ट्रांसमिशन की थी न्यूज वन पर। इसी तरह से आज पर मैंने बिहाइंड द विकेट किया था, जो शो पहले मुइन भाई के साथ होता था, मुइन खान के साथ। तो बस ऐसा सच नहीं है, लेकिन यह है कि वो 2019 ही था वो, कि जिसमें वो वाला पुराना प्लेटफॉर्म जो था उस पर हमने थोड़ा बहुत काम किया, और इफ़ी भाई भी कर रहे थे। फिर ये था कि इस पर तो 2020 में ही आए बॉस, इसमें तो हम ऑलमोस्ट 2020 में ही आए शुरू में।
हाँ जी, मैंने ये आपके एक दो वीडियो में ऐसा लाइक आपको बोलते हुए देखा था 2017-18, सॉरी फॉर हाँ, दी ईयर। वो टीवी की होंगी, वो जी टीवी की होंगी जिसमें मेरे साथ एक दाढ़ी वाले होस्ट होंगे। आई थिंक वो आज की ही और न्यूज़ वन ही की होंगी। बिल्कुल। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक जब 2016-17 में आप कर रहे थे और अभी में, तो आपको क्या लगता है कि यूथ में और लोगों में क्रिकेटिंग ब्रेन की बात करें अगर, तो क्या इम्प्रूवमेंट हुई है? लोग अब ज्यादा नहीं, क्रिकेट को समझने लगे नहीं, हैं या क्या? इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है सर। मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं हम खुद टीवी वीवी तो चलता रहेगा, लेकिन देखें ये जो हमारी फैमिली बनी है चैनल की, ये सबसे बड़ी चीज है। देखें इस वक्त टेलीविजन पर कोई भी हमें 10 लोग पूछते हैं, जहां हमारी बहुत इज्जत होती है या थोड़े ये कह लें कि मोहब्बत ज्यादा दी जाती है बिहाइंड द सीन हमें, और हमें वाकई में बहुत वो किया जाता है, हम उस जगह का इंतखाब इसलिए कर लेते हैं कि यार बस उधर ही बैठ जाओ जहां पर बात है। लेकिन अगर सच पूछें तो ये यूट्यूब जो है ना, ये हमारी असल पहचान है भाई। और इसी के बाद जो है बहुत सारी चीजें होती हैं कि हर कोई बहुत ज्यादा जानता है, क्योंकि टेलीविजन पे बैठने वाला आदमी हर किसी की पहचान में नहीं होता, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। लेकिन ये जो यूट्यूब है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो इसकी वीडियोस, इसके क्लिप्स इधर उधर शेयर होते हैं। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मैंने इंडिया में कुछ लोगों को देखा जो बहुत ही ज्यादा फेमस फेसेस नहीं है, तो मेरे सामने उनके भी कभी कभी क्लिप आ जाते हैं। तो अगर कभी दोबारा कहीं बंदा देखेगा तो पहचान लेगा कि यार ये बंदा अच्छा है, कहीं पे कुछ कर रहा था, फला 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 ना, एनालिसिस कर रहा था या कुछ और कर रहा था, हाँ यार ये नजर आया था कहीं यूट्यूब पे। तो बात ही, लेकिन जो आपके इस सवाल का जवाब देने में आपको यहाँ पर लाया हूँ, एक बड़ा मैंने अनफॉर्चुनेट मामला पाया। जितना यूट्यूब है, अब जैसे लोग बहुत सारे लिखते हैं मुझे कि वासे भाई नजरिया बदल दिया आपने क्रिकेट देखने का, कि क्या क्या देखो, लेंथ देखो, लाइन देखो, बैट्समैन का रेंज देखो, लोग कॉपी करते हैं, फला फला लोग बोलते हैं। अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है, मैं झूठ झूठ बोलते ही नहीं है ना भाई, ये नेचुरल है, ये ह्यूमन साइकी है, अपनी तारीफ अच्छी लगती है सबको कि हाँ यार मेरी ये एक्सपर्टीज है, तो लोग बताएं, मेरे लोग तो बताएं कम से कम कि हाँ यार आपको ये आता है अच्छा, और ये सब हम समझते हैं। लेकिन मैंने ये पाया कि जितने अपकमिंग फैंस हैं, अच्छा माजरत के साथ पाकिस्तान के या इंडिया के, उसमें परसेंटेज बहुत हाई है कि जो लोग अंडरस्टैंड करने लगे हैं चीजों को। लेकिन यार वो जो कम परसेंटेज है, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो, वो यार मुझे डराती है। मुझे वो लगते हैं बिल्कुल ही माजरत के साथ एक डंप माइंड, कि यार सामने सामने से 50 दलीलें देके भी लोग समझा रहे हैं, तुम वहीं के वहीं हो। मतलब बेसिकली दे आर नॉट क्रिकेट लवर्स। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, दे आर बैशर्स और इवन हेटर्स, या जलन और हसद वाले लोग, कि यार बस ये फला आदमी कर रहा है, आओ इसके पास जाके इसको कुछ बोले, आओ किसी और के पास जाके अब किसी और को कुछ बोले। तो ये कुछ लोगों का शौक होता है। मैं इसे बोलता हूँ अपनी जबान में कुटिनी औरत, ये कुटिनी औरतों वाली आदत होती है। ठीक है। वासिफ भाई, पहले मैं बात करूंगा फखर जमान की। ये टेक्निक पे बहुत लोग बात करते हैं ना। आप कौन है सर? जैद भाई? जी जैद भाई मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बोलें, जैद लियाकत साहब बोलिए। फखर की टेक्निक पे बहुत बात करते हैं लोग ना कि नई बॉल पे बहुत स्ट्रगल करते जब टीम, और ये इस बारे में जरा आप बताएं। अच्छा फखर, देखें सर, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले लोग हैं, ये कुछ अजीब सा कर देते हैं गिवन डे पर। फखर इज वन ऑफ दोस्त। फखर की कोई टेक्निक है नहीं, फखर जैसे लोगों का मेथड होता है, टेक्निक नहीं होती। फखर ने और पिछले 1.5-2 साल में कुछ अपना डिफेंसिव प्ले भी इम्प्रूव किया था, अभी तक भी। इस 4-6-8-10 मैचों में उसको मसले हुए बीच बीच में, लेकिन उससे पहले मैं जिस फखर को देख रहा था, वो पीएसएल में भी अपना डिफेंस भी दिखा रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो आइडियल तो नहीं होता, लेकिन वो कैफियत है। तो उसने कोशिश की कि मैं जरा गेंद रोकना भी सीखूं। देखें ऐसे प्लेयर्स जहां बॉल हिलेगा वहां तो बड़ा मायूस कर जाएंगे, और जहां पर जरा मौके होंगे, मौके इवन होंगे। देखें फखर को चाहिए ट्रू बॉल। ये होते हैं जल्दबाज खिलाड़ी जो अपनी ताकत, बॉल की ताकत से ज्यादा सर्व करते हैं, और जो टाइमर होते हैं अच्छे, वो गेंद को बैट तक आने देते हैं और सिर्फ पुश करते हैं, प्लेस करते हैं। फखर के पास भी कुछ शॉट्स हैं जो प्लेस करने के, बट मोस्टली जो उसकी रेंज है, वो ताकत का इस्तेमाल करता है कि वो एकदम से ऑफ स्टंप से पकड़ के मिड विकेट पे बॉल खींच देता है,
या वो ऑफ स्टंप पे इतनी जोर से मार देता है, ना वो स्क्वायर कट होता है ना वो ड्राइव होता है, वो कोई बीच की चीज होती है, वो अजीब सा मारता है उसको। तो कहने की बात ये होती है कि इन लोगों पर एक आप वाइल्ड कार्ड एंट्री टाइप बात समझ लें कि इन लोगों पर आप चांस लेते हैं। देखिए, अगर हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले कुछ ना कर सकते तो वीरेंद्र सहवाग फिर कुछ भी ना करते, और मेरा मानना है जो कुछ उन्होंने किया वो बहुत से बड़े बड़े नामों ने भी नहीं किया उनकी मौजूदगी में इंडिया के लिए। तो मैं फखर को बैक ही करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़ी बॉलिंग जब आती है, ट्रू पेस, तेज बॉलर, बाउंस वाउंस आउट करें आपको, तो फखर उनके गले पड़ जाता है हमेशा से, मोर और लेस पड़ जाता है, क्योंकि फखर पुल वुल अच्छे मारता है। फखर ताकतवर पुल मारता है, वो क्लियर करता है, हर एरिया को क्लियर कर सकता है, वो एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पे छक्का मार सकता है। तो रेंज बड़ी कमाल है उसकी, और वो इसीलिए कि वो प्योर प्योर ताकत का इस्तेमाल करता है। जी, थैंक यू आसिफ भाई, शुक्रिया। थैंक यू जैद भाई। सर ये बताओ कि ये तो अच्छा हुआ, चलो दे दे इंडिया वॉन एशिया कप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दे विल हैव टू स्टे हम्बल। इस टीम को हम्बल रहना पड़ेगा, क्योंकि दे कैंट लेट इट गेट टू देयर हेड। दूसरी बात ये कि ये जो अपकमिंग सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में, लेट्स से अगर इंडिया लूज करता है, उससे आपको क्या लगता है, वुड इट अफेक्ट द पीपल की जो परसेप्शन है, या फिर टीम की साइकी कितना इफेक्ट होगी उससे? यार वेरी गुड क्वेश्चन विनी भाई। बात यह है कि आई थिंक के राहुल द्रविड़ जिस टीम के कोच हैं और रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली जैसा सीनियर है, तो आई थिंक वो अपनी पूरी टीम में यही मैसेज ट्रांसफर करेंगे कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है, ये हमारा टेस्टिंग पीरियड है। असल हदफ, या अगर मैं हिंदी जबान में कहूँ कि असल लक्ष्य हमारा वर्ल्ड कप है। और हर टीम का, हर मुल्क यही कह के आ रहा है, सही है। जैसे गोरे कह रहे होंगे हमारा टारगेट वर्ल्ड कप है, हम पाकिस्तानी कह रहे होंगे यार हमारा हदफ वर्ल्ड कप है, तो इंडिया में कहा जा रहा होगा कि हमारा लक्ष्य वर्ल्ड कप है। तो डेफिनेटली दे हैव टू स्टे हम्बल, और आई थिंक के रहेंगे भी। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी जीत को सेलिब्रेट किया, बट समहाउ दे ऑल्सो फील, या दे ऑल्सो फेल्ट कि यार श्रीलंका आज बहुत ही कमजोर भी खेला। यानी ठीक है, बॉल हिल रहा था, मैंने खुद देखा बहुत हिल रहा था, मैं भी कहता हूँ, बट कुछ ऐसे शॉट्स थे कि वो जरा बेहतर भी हो सकते थे, या गेंद को छोड़ा भी जा सकता था। बट आई थिंक के बताने वाले ये नहीं बता पा रहे ना, इतनी पिच की रीडिंग नहीं है, या फिर मैच नहीं देखा होगा, सोशल मीडिया पे समझ लिया होगा। बता ये नहीं पा रहे कि जब आप दोनों तरफ बॉल हिलाते हो तो बल्लेबाज पागल हो जाता है, क्योंकि बॉल हिलता हुआ आपको साल में अब 4 दफा ही मिलता है। तो इस एशिया कप में आपको बॉल डांस करता हुआ जरूर मिला है, बिकॉज ऑफ द वेदर एंड हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। और पिच के बिहेवियर भी चेंज हो रहे हैं भाई, अचानक से कहीं बारिश हो, रुक जाए, क्लाउडी वेदर आ जाए, फिर धूप निकल आए, तो ऐसी कंडीशन में पिच आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेगी। नरम है, नरम विकेट होती है ना। अब नरम विकेट से हम समझते होंगे जितनी सख्त विकेट होगी उतना सीम मूवमेंट कम होता है, नरम विकेट पे सीम मूवमेंट ज्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया में साइडवेज मूवमेंट नहीं होती, बाउंस ज्यादा होता है, क्योंकि बड़ी हार्ड विकेट्स होती हैं ज्यादातर। अगर उन्हें मूव करवाना होता ऑफ द विकेट बॉल तो वो घास मत देते हैं विकेट पे। इसी तरह इंग्लैंड में बॉल सीम होता है, क्योंकि थोड़ा अंडरनीड जो विकेट का सरफेस है वो नरम होता है। इसी तरह पाकिस्तान इंडिया के मैच में विकेट थोड़ा नरम था सेकंड हाफ में, अंडर लाइट्स, बीच में बारिश भी हुई थी, ठीक है, तो नमी थी, तो वो नरमी की वजह से बॉल कितना ज्यादा सीम भी हुआ, स्विंग तो अपनी जगह, सीम भी हुआ। तो जिस तरह पांड्या ने बाबर को बोल्ड किया, वो बॉल कितना अंदर आया है यार, 1.67 डिग्री वो अंदर आया है बॉल। तो कहने की बात है कि भाई ये वाली बात होती है। बाकी डेफिनेटली इंडिया का हदफ, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से क्या होगा, तो भाई ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज दोनों टीमों को भारत में प्रैक्टिस का मौका देगी। उस सीरीज से कुछ नहीं होने वाला हार और जीत से। उस सीरीज में सिर्फ ये हो सकता है कि अब तक जिन जिन के बल्ले में अब रन्स नहीं है वो भी रन्स बना लें, वो भी कॉन्फिडेंट हो जाए। सूर्या है तो 15 का ही पार्ट, तो सूर्या को उसमें 1-2 मैच आप दे दें कि सूर्या रन बना ले, एक आध जगह ईशान भी रन बना ले, शुभमन गिल भी एक मैच में उनके खिलाफ रन बना ले। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में उनके खिलाफ रन बना नहीं पाया। बाकी रोहित और विराट ना भी बनाए तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि ये नहीं कि वो क्रिकेट के कोई भगवान हो गए, लेकिन कहने की बात ये है कि उन्होंने बहुत बनाए में, गिवन डे पे हो सकता है वर्ल्ड कप में डायरेक्ट बनाए वो,
तो ये जो छोटे यंग प्लेयर्स हैं ये रन बना लें, इनको जरा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ यार हमने इनके खिलाफ भी कर दिया, हमने स्टार्क के खिलाफ भी कर दिए, कमिंस के खिलाफ भी कर दिए, तो ये वाला कॉन्फिडेंस इंडिया को बड़ा बूस्ट करेगा वर्ल्ड कप में। जी कोई और भाई? हेलो वासे भाई, नमस्ते आपको। कैसे हैं, कुछ आवाज आग्रह आ रही भाई? है? जी जी, बस आ गई बढ़िया आ गई। वासे भाई। जी वासे भाई, मेरे दो सवाल है। एक हम्म, पहला सवाल तो आज शायद अभी शाम को न्यूज मीडिया से ही रिपोर्ट आ रही है कि शायद अक्षर की इंजरी थोड़ी सीरियस है, तो शायद अश्विन के लिए कवर के लिए वो लोग बात कर रहे हैं। हम्म, तो मुझे एक तो सवाल ये पूछना है कि क्या हमें अश्विन के साथ जाना चाहिए, या आज हम लोग वॉशिंगटन सुंदर को इंडिया से बुलाया हमने खाली आज के मैच के लिए, तो जी उसको एज कवर देना चाहिए अभी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में थोड़े मौके, ताकि पता चले क्या मैच फिटनेस है। और दूसरा सवाल ये है सर कि ये तो है कि इंडियन हमारी बैटिंग लाइनअप जो है थोड़ा स्पिन के सामने स्ट्रगल करती ही है। अभी हम्म, हमने देखा कि सिंगल्स नहीं निकलते मिडिल ओवर में, अभी हम्म, बांग्लादेश वाले मैच और श्रीलंका वाले मैच में भी। तो जी जी। क्या हमें पिचेस जैसे चेन्नई में हो गया, लखनऊ में हो गया, कलकत्ता में हो गया, वहाँ एक्स्ट्रा असिस्टेंस मिलेगी, तो क्या हमें इंडियन चांसेस के लिए मतलब बीसीसीआई को या पिच क्यूरेटर्स को ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा टर्नर विकेट ना दे? नहीं, मैंने तो आपको बताया है, वीडियोस में हम लोग ये बात बारहा करते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी को ये समझना है कि इंडिया क्या चाहता है, चले अंदर ही है ना वर्ल्ड कप इंडिया में, आईसीसी की इंस्ट्रक्शंस तो होती हैं लेकिन इन्फ्लुएंस तो होगा। तो इंडिया के मैचेस में आपको रैंक टर्नर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां बॉल टर्न नहीं होगा। इतना लंबा इवेंट है, 50 दिन का खेलते जाएंगे आप क्रिकेट, तो थोड़ा बहुत स्पिन कराने वालों को मिलेगा। कुलदीप यादव को, दूसरे रिस्ट स्पिनर्स को, जैम्पा वगैरह को कहीं ना कहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बट मेन थिंग ये है कि भाई अश्विन का तजुर्बा बहुत है, रवि और सुंदर बहुत स्किलफुल है, और दोनों की ताकत फ्लैट बॉलिंग है। अब समझिएगा, फ्लैट बॉलिंग करना दोनों की ताकत है। अश्विन एयर दे देते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत एयर दे के वनडे में इफेक्टिव नहीं होते, वो मार भी काफी लग जाती है। अगर मेरे बस में हो तो देखें, कहीं ना कहीं आपको बैकअप में एक फिंगर स्पिनर का कंट्रोल चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर आपको कोई स्पिनर ही डालना है उस स्क्वाड में, तो गो विथ यूजी चहल। आई थिंक ये ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है मुझे इंडिया की कॉज के लिए, कि यूजी को कवर कर ले और यूजी को खिला ले। क्योंकि हो सकता है कि कहीं किसी पिच पे आपका, मेरा ख्याल से भारत का जो वर्ल्ड कप का मैच है ऑस्ट्रेलिया से, वो चेन्नई में है अगर मैं गलत नहीं हूँ, इफ आई जी एम जी नॉट बिल्कुल, चेन्नई मिस्टेकन। में ही है। तो आई थिंक जैसे अगर आपका ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई में मैच है, तो आप वहां पर दो पेसर के साथ इन सबको भी खिला सकते हैं। बट आई थिंक ये इंडियन टीम मैनेजमेंट ने ठान ली है कि पेस ऑप्शन 30 ओवर तो है, 20 ओवर मैक्सिमम वो स्पिन से करवाएंगे। तो आई थिंक कि ठीक है, अब वो देखें कवर पे किसके नाम लॉटरी लगती है। लेकिन मेरा ख्याल से यजविंदर चहल को शामिल कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो सर मैं यही जी कह रहा हूँ कि जी आप चहल की बात कर रहे हैं, तो चहल के आने से तो मुझे वापस वही लगता है कि जो टीम मैनेजमेंट इंडिया की बात करे कि हमें बैटिंग लाइनअप थोड़ी एक्सटेंडेड चाहिए, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर चहल भी रहेगा, कुलदीप भी रहेगा, तो फिर बैटिंग लाइनअप तो 7 पे ही खत्म हो जाएगी। और जो गिवन अभी फॉर्म है जडेजा का वनडे क्रिकेट में, तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर ये तो ऐसे हो जाएगा कि इंडियन बैटिंग लाइनअप 6 पे ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं तो अभी जडेजा को किसी भी तरीके से एक बॉलिंग ऑलराउंडर समझ रहा हूँ रेदर देन बैटिंग ऑलराउंडर। यार, मैं तो देखें अक्सर मजाक भी करता हूँ, कुछ लोग, मैंने कहा हर तरफ कुछ लोग होते हैं, हजम नहीं होता। मैं ये कहता हूँ जडेजा का जितना एक्सपीरियंस है, उसने क्रंच मैचेस में ना बल्ले से उतना कुछ किया नहीं है। यानी कि अब उसको इंडिया को मैच जिताने चाहिए। अगर मैं आपको सच बताऊं, तो रोहित विराट के बाद तीसरा आदमी बल्ले से भी मैच विनर होना जडेजा चाहिए। होता पांड्या है वो तीसरा आदमी। अभी एशिया कप से पहले जब वेस्ट इंडीज में हारे, तो वो तो हमारा जो खासा है हम तो छोड़ते नहीं है, आपको पता है, एफी भाई तो बख्शते नहीं है बिल्कुल। बस भाई जो हारा है उसको उसकी टेक लो। तो भाई हमने पांड्या को खींचा, लेकिन साथ साथ जब एनालिसिस की है, तो मैंने कहा कि आप वनडे टीम में आप हार्दिक पांड्या को देखिए, क्या हार्दिक पांड्या मैच जितवाएगा बल्ले से। सही है, ये एनालिसिस रिकॉर्ड पर है, क्योंकि ये पक्के वाले एनालिसिस थे, इसमें मजाक का और बैशिंग का एलिमेंट नहीं था।
तो आपने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या खड़ा हो गया, विकेटें गिर गई। तो ये वाला काम मैंने रविंद्र जडेजा को कि 4-5 विकेटें गिर गई कभी करते हुए देखा नहीं है किसी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, बहुत कम देखा है माजरत के साथ। इसका ये मतलब नहीं वो कर नहीं सकता। इट्स टाइम टू जडेजा कि यार अब डिलीवर कर दो भाई, बल्ले से डिलीवर कर दो, क्योंकि तुम 4 आउट करने वाले बॉलर हर विकेट पे नहीं हो। तो यार तुम 100 बनाओ, तुम्हारी फर्स्ट क्लास में जो है वो 3 ट्रिपल सेंचुरीज हैं, वो क्या मतलब किस बात की है? चने चने खाने के लिए। जी जी, फिर भाई वासे भाई शुक्रिया आपका आंसर के लिए, थैंक जी, यू। कोई और भाई? आवाज आ रही है पर बात समझ सर नहीं वो आ रही। पूछ रहा है कि नसीम शाह जो है उसने अपनी पूरी हाँ, पूरी अपने टैलेंट को जस्टिस नहीं दी अभी तक। अच्छा 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 अच्छा, जस्टिफाई नहीं कर सका भाई। नसीम शाह ने अभी तक खेला ही कितना है? वही तो मैं कहता हूँ भाई, खेला कितना है, फर्स्ट क्लास कितनी है? अभी पाकिस्तान के लिए भी इवन उसने क्या खेला है? कुछ भी तो नहीं। खेलने तो दें। आई थिंक बॉल दोनों तरफ हिला रहा है वो, ये मैं आपको बता दूं। मैं उसकी कोई ये वाली कहानी नहीं दे रहा आपको कि वो क्या कर देगा और क्यों कर देगा। मैं तो खुद कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी को जवाब दिया शुरू में कि भाई ये 10 ओवर लगातार तीन तीन मैच में कराएं, तो फिर चौथे मैच में इनको देखना, फिर समझना कि इनको, इनके पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है, बल्कि लिस्ट क्रिकेट भी कम है नसीम के पीछे या हारिस के पीछे। तो वही तो बात है कि भाई अगर आपने नहीं खेले होते फर्स्ट क्लास मैचेस 50-100, और आपने लिस्ट ए भी 100-150 नहीं खेले होते, तो एक वाजे फर्क आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी जो एक होती है स्किल्स, स्किल तो आपकी है कि आप तेज हो, गॉड गिफ्टेड हो, बट यार वो फिर जो किसी टूर्नामेंट में आप एंटर होते हो और 9 मैच होते हैं, तो वहां आपको बताना पड़ता है। T20 का इवेंट में तो चल जाता है, लेकिन वनडे के इवेंट में बड़ा मुश्किल है। 9 मैच हैं कम से कम हर टीम के। तो ये जितने भी फास्ट बॉलर्स इस वक्त मैदान में उतरेंगे, तो इस वर्ल्ड कप के बाद आप ये भी फैसला कीजिएगा साथ साथ परफॉर्मेंस के, कि फिटनेस वाइज कौन से फास्ट बॉलर्स हैं जो वाकई 50 ओवर की क्रिकेट के काबिल हैं। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हमजा? आप ठीक हैं, जी खैरियत हम से हैं? ठीक हैं। आप बताइए वासे भाई। जी, अल्लाह का बड़ा करम है, वासे आप भाई सुनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैंने आपको देखना शुरू किया, मतलब 4 दिन हुए होंगे। आपकी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू करी बहुत और शुक्रिया। मैं मतलब फैन हो गया हूँ आपका। थैंक यू भाई। मतलब मुझे लगता था, मैं क्लिप्स देखी थी एक दो जिसमें आप घंटे का किंग या हाँ, शुभमन गिल इसी को भाई कह क्रिटिसाइज रहे कर रहे हैं यार, वो बात पता है क्या है? मैं तुम्हें आज हैं। देखो, हाँ अभी ये कम लोग हो, आप सबसे एक गुजारिश है, ठीक है, ये आपकी हाँ। जॉब नहीं है, आप हमारे कुछ हमारे हम्म लिए कोई काम नहीं करते, आप हो हमजा या कोई भारत से हो। हम्म देखो मेरे हम्म छोटे भाई हो, आप मेरी बात को समझना। देखो पब्लिक हम्म। सोशल मीडिया पे चुटकुले चाहती है। अच्छा, हाँ और फिर हमारे लिए तुम शायद पाकिस्तान से ही हो ना? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ जी एक प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई जी। हमसे सच्ची बात सुन रहा है ना, बाबर की, जो अब तुम देख रहे हो, वही 2 साल से दिखा रहे हैं तुम्हें कि ये किस लेवल का प्लेयर है, ये कैसे खेलता एग्जैक्टली है, वही। ये यंगस्टर्स को नहीं आने देता। तो अब होता क्या है कि बड़े सख्त शदीद ग्रुप है हमजा, तुम तो जानते हम्म। होगे मुझसे ज्यादा। अब होता क्या है कि उन ग्रुपों के लड़के फेसबुक पे हम्म। हमारा कोई ऐसा क्लिप मर्ज हाँ करके काटते हैं कि तुम ये समझोगे हाँ। अबे यार ये तो बहशन है, ये सिर्फ बहस मुझे कर। मुझे लेकिन पहले जब लगा तक कि तुम, मतलब हाँ, मुझे पहले लगा वासे भाई कि आप लोग मतलब सिर्फ मजाक करते हो। मैंने जी, जिस दिन पूरी वीडियो देखी मैंने कहा भाई कसम से इस बंदे को जितनी नॉलेज है ना, हाँ, आसपास अभी तो कोई नहीं दिखता है पूरे पाकिस्तान में जिसको जो इतनी नॉलेज रखता है और बोलता है ओपनली आके सामने। बहुत तो शुक्रिया। अच्छा लगा वो जान के। और वो मैं इफ्फी भाई का पार्ट है वो इफ्फी भाई। देखो हाँ। इफ्फी भाई वैसी एक स्टार है, वो क्रिकेट हाँ पर अरे बात करे या इफी ना भाई। करे, वो इफ्फी हाँ भाई ड्रामा आर्टिस्ट हैं बहुत तगड़े। ड्रामा। सही इफी है, भाई ने तो ये तो इफी भाई ने उनकी इफ मोहब्बत है, और हाँ कि वो मेरे साथ लगे में, मैं भी लगा हुआ हूँ। क्योंकि हाँ अगर और वो मेरे साथ ना हो या मैं उनके हाँ साथ ना हूं, तो शायद हम लोग इस तरह हाँ रोजाना किसी के साथ शो भी नहीं कर सकते, मिजाज ही नहीं सही। मिलते ना। इफी तो भाई ने कहने की कल बात, हाँ हाँ, तो इफी भाई ने कल स्लो फ्लो में बोलने दिया कि मार्को एंसन कैलिस की बराबरी करेगा। कोई बात नहीं, लेकिन आज उसने तो आउट तो कर दिया। देखो देखो, बात हाँ। को समझो, बात ये होती है कि हम्म। वो किसी को पर्सनल नहीं बोल रहे। वो हाँ बेसिकली देखो मजाक कर रहे वो हैं। बताते हैं, और वो जब सीरियस बताते हैं भाई, उनकी स्टडी है, उनकी स्टडी कुछ और है, बाकी किसी की स्टडी अपनी होती है।
वो इफ्फी भाई प्रोड्यूसर रहे यार स्पोर्ट्स के बहुत अरसे, तो उन्हें ये सारी चीजें पता हैं कि लोग क्या एजेंडा चला रहे हैं, टीम में क्या करते हैं, ये कैसे किसका लड़का बचाते हैं। अब वो कुछ लोग उनका ले अगर तरीका ये वाला नहीं अंडरस्टैंड करते तो आप करते होंगे कि वो बताते क्या है कि भाई जो इनका लड़का, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अब अगर वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सऊद इनकी पसंद नहीं है ना, तो उसके पीछे तैयब ताहिर भी रख लिया, तो अब ये तुम समझो वो क्या कह रहे हैं। अगर मुझे तुम नहीं पसंद हो ना, तो मैं तुम्हें डरा के रखूंगा कि हमजा मेरे पास गुफरान भी है, मैंने एक फर्जी नाम लिया है, मेरे पास गुफरान भी है, अगर तुम नहीं तो मैं गुफरान। अब तुम इसी प्रेशर में ठीक काम करते रहोगे कि यार गुफरान भी है, लेकिन तुम काम तो कर रहोगे, तुम दिल से खत्म हो जाओगे। गॉट माई पॉइंट? जी जी, सही बोल बस रहे हैं। तो वो यही वैसे बात, यही वाली बात है। अब इन्हें समझने के लिए भी शऊर चाहिए होता है ना, तो वो जी। शऊर शऊर की जिनमें कमी है भाई। अच्छा, अब लोगों के पास कोई बात भी नहीं की। देखो यहाँ बहुत सारे हमारे इंडिया से दोस्त हैं, ये इनके सामने मैं बोल रहा हूँ, इन्हें खुद पता है कि भाई हमसे पहले कोई इंडियन प्लेयर खराब खेले तो उसको कुछ बोल नहीं सकता था यार, वो लोग नाराज हो जाएंगे, व्यूज नहीं आएंगे। भाई हम तो कहते ही यही है कि नहीं देखना तो नहीं देखो, हम ओवरऑल क्रिकेट पे सच बोलेंगे। तो देखो, सच जो सच समझता है, तो इसका मतलब इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान और इंडिया। जो सच समझता है वो देखता है ना यार, उसे पता है कि भाई ये साफ नीयत से बात करते हैं और यार इनके पास नॉलेज भी है, करेज भी है। और राइट, आपने मुझे वही। सुन लिया, तो आप मुझे 5-7 बार सुनेंगे, तो आपने भी ये समझ लिया कि नहीं, वासे भाई जो बता रहे वो कोई और नहीं बता सकता। अब मैं आपको बताता हूँ एक बात, चलो यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, अपने ही चैनल की फैमिली है, ये 7 भाई हैं, आकाश भाई जैसे लोग हैं, ये तो बड़े दिल के करीब है। इनकी भी अपनी हिस्ट्री है, कुछ लोग फैंस होते हैं, लेकिन कोई इनकी अपनी हिस्ट्री है, ये हमेशा से हमारे साथ है। तो कहने की बात ये होती है कि हमजा मियाँ, अब मैं जहां जाके बैठ रहा हूं, मैं नहीं बैठता था, मैं मना कर देता था, क्योंकि हमारा चैनल पे असर पड़ता है, अभी भी पड़ा है। तो मैं शायद, अब तुम देख रहे होगे अगर 4 दिन से, तो तुम्हें 4 दिन में भी लगा होगा कि इंडिया मैच जीत जाए तो उस वक्त तो सिर्फ लाइव आके बैठ जाओ, कुछ बोलो भी नहीं। ठीक है, हलचल होती है ना, बहुत शदीद वेरिएशन होती है, सिर्फ 1 घंटे लाइव कर लो। तो देखो इंडिया के मैच में हम लाइव नहीं आए, होंगी कोई कमिटमेंट्स, आ भी सकते होंगे थोड़ा बहुत, तो हम उस तरह से काम नहीं करते हिरस में कि यार वो बस व्यूज पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा। हम करते हैं दिल से काम कि यार सुकून से बैठेंगे। हमने 3-3 बजे लाइव किए हैं, रात को 4 बजे कोई लाइव करके दिखाए और 100 लोग 200 लोग जमा करके दिखाए। हमने 4 बजे लाइव किया, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 हजार लाइव काउंट पे, बहुत पहले, और 3-4 दफा किया है। तो कहने की बात यह है कि वो लाइव काउंट की तादाद पे मत जाओ, वो ये देखो कि वो 5-7 हजार लोग कौन है जो 4 बजे भी हमें सुन रहे हैं। यार कुछ तो ऐसा बता रहे होंगे ना, मतलब आदमी नींद छोड़ के मजाक तो नहीं सुनेगा ना, सुबह सुन लेगा। सही सही बात बोल रहे हैं वासे भाई। बट पता है वासे भाई, प्रॉब्लम क्या है लोगों का, कि हम्म। बाबर आजम को मतलब एज अ हाँ पाकिस्तान दिखाया जा रहा है, एज अ बस पाकिस्तान अब दिखाया आ जा गए रहा है। तुम, अब आ गए तुम असल जगह पे, बस यही हाँ, मसला है। मतलब अगर आपने बाबर को कुछ सुन रहे हैं बोला तो आकाश आप भाई, पूरे पूरे घंटे के फैंस पाकिस्तान को क्या कर बोल रहे रहे हैं? हो। हाँ, ये हो रहा है, यही सुन लिया। प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, ये देखें प्रॉब्लम है बच्चा कि अच्छा है अगर ना अपना, पढ़े लिखे हर जगह है भाई। अब ये भी देखें, हमारे पाकिस्तान से है ना, इनको समझ आई। अच्छा, तो मैं ओवर प्रॉब्लम प्रेज ये है। मैं ओवर प्रेज नहीं करता हमजा, तुमने अब हम्म। 4 दिन में ये जरूर समझा होगा। लेकिन यार जी माशाल्लाह तुम खुश रहो, आबाद रहो, ऐसा नहीं तुम तारीफ कर रहे हो, नहीं भी जी करते तो तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग बड़ा सेंसिबल, एक लहजा बताता है, बहुत अच्छा जी हेड है तुम्हारे ऊपर सर पर, ओ जिस्म जी पर। तो ये है जी, कि खुश शुक्रिया। रहो भाई, बहुत आबाद रहो भाई, हम्म। हमें भी सुनो जहां से अच्छी नॉलेज मिलती है। देखो मसला क्या है बेटा, तुमने अब 4 दिन सुना तो तुमने ये भी सुना होगा कि मैंने मिड ब्रेक में कह दिया, इफ्फी भाई भी मुझसे कहने लगे रन ज्यादा हो गए, तो मैंने हाँ, कहा भाई ये मैच श्रीलंका जीत गया और 3-4 ओवर आपने पहले जीत बोला, गया। हाँ। तो इफ्फी भाई कह रहे पक्का? अच्छा वो देखो, वो मेरे हम्म। बड़े हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अगर वहां से पिच पढ़ के कुछ कह रहा है हाँ। तो वो फाइनल है। तो इफ्फी भाई ने शुरू में कहा हम्म। "बे, ये कैसे हार जाएंगे"। मैंने कहा भाई ये हम्म। मैच श्रीलंका जीत गया। अब तुम जमान खान को छोड़ो हमजा, ये समझो मेरे भाई हम्म। कि पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका को आखिरी 48 बॉलों पे 44 रन चाहिए और 7 विकेटें बाकी हैं। तो मैच तो श्रीलंका ने इंटरेस्टिंग बताया ना, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया होती तो वो तो 5 ओवर में रन बन गए थे। जी, श्रीलंका ये खुद बात डर डर के ये खेल रही।
ये बात आपने लाइव में भी बोली थी कि मैच तो जी वहीं पे खत्म हो गया था, हाँ और फिर मैच तो बाबर ने बोल दिया कि बॉलर्स वर नॉट अप टू द मार्क। जी मतलब जी बॉलर वो बॉलर आप क्या देखो करे। यार, जिम्बाब्वे में 130 रन बनाने के बावजूद 130 हाँ। पे रिस्ट्रिक्ट करके इसने कहा था कि 10-15 रन ज्यादा बनवा दिए बॉलर्स ने। सपना मानता ही नहीं है ना ये, इसे कहते हैं गलती नहीं ईगो। माननी इसे। देखो ईगो हमजा, तुम खुला। पाकिस्तान से हो, मैं तुम्हारी हद तक कह रहा हूँ, और स्पेस में खासी लोग होते हैं, चैनल पे तो हम्म। हर कोई सुन सकता है। बात मैं हम्म। तुम्हें साफ बोलूं, ये एक बहुत कूल माइंडेड चालाक है, इसने पाकिस्तान जी, की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है बेटा। बर्बाद कर दिया है। तो अच्छा नहीं है अगर मानने तुम वाली ये बात। समझते हो, तो वो तुम हो यार किसी के हम्म। कोई वो एम्प्लॉय तो हो नहीं, लेकिन अगर दिल है जी। तो अच्छा अच्छा इमेज दिखाओ। तुम अच्छे क्लिप काट लो, अगर तुम काट सकते हो किसी यू कट वगैरह पे, तुम अच्छे क्लिप, सही। क्रिकेट के टेक्निकल क्लिप। अच्छा ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोगों ने बहुत टेक्निकल, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, शायद तुम्हें हम्म। पता ना हो। देखो मैंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से 2 दिन पहले, जिस दिन जी। तय हो गया था, मैंने ये भी बता दिया था कि बाबर और रिजवान जिस पिच पे मैच होने वाला है, पाकिस्तान के 70% रन बनाएंगे। क्यों? और बनाए। और बनाए, 2 दिन बाद बनाए। क्यों बनाए? वो रीयूज विकेट थी, वो स्लो और लो बाउंस की विकेट थी। उस पे जब पहला मैच हुआ था टूर्नामेंट का ओपनर सीरीज, ओ हाँ, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, वो ऑस्ट्रेलिया का, हाँ, तब भी स्लो थी। तब भी अच्छा स्लो फिर थी। मैंने ये भी बता दिया था फाइनल से पहले वाले दिन के बटलर को कैसे आउट करना है। उसे चौथे स्टंप पे बॉल दो और बाहर निकालो, ठीक है? तो नसीम का बॉल बहुत बाहर निकल रहा था, लेकिन बाबर की कप्तानी में भाई इतने गट्स ही नहीं है कि वो उसे आके समझाता कि नसीम ये बॉल 20 से करो। वो एक ही तरफ करता रहा, वो लीव होती गई, बॉल आउट थोड़ी होगा जब 5वें स्टंप से बाहर निकलेगी बॉल। ऐश थोड़ी कर पाएगा बंदा, इतना सा तो बल्ला होता है। बाबर को मसला यही है ना कि बाबर को पता ही नहीं है कि कैप्टनसी करनी कैसी है, बस जी बना हुआ नहीं है, नहीं, कर रहा है। देखो देखो एक और बात समझो, मैं जीटीवी पर भी अभी बैठ रहा हूँ ना, अब तक आज मेरा मुआहदा, आज तो फिलहाल वाला एंड हो गया, तो मैंने जीटीवी पर भी 4-5 दिन पहले होस्ट को बोल दिया था कि एशिया कप कह रहे हो तुम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है इंडिया, जा रहा है। मींस कि इंडिया वन ऑफ द फर्म फेवरेट्स, मेरी नजर में टॉप टू में है कंटेंडर। एक होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल पर दाव खेला करो, सेंटिमेंट्स पर नहीं। देखो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री खराब है कि यार वो चोकर्स हैं, वरना साउथ अफ्रीका की डेप्थ इस वक्त ज्यादा खतरनाक है, कंपेयर करो अगर तुम इंग्लैंड से, क्योंकि वर्ल्ड कप होना है इंडिया में। इंग्लैंड की बॉलिंग से अच्छी बॉलिंग साउथ अफ्रीका की साबित हो सकती है, कहां पर हमजा? इंडिया में। इंडिया में, हाँ। क्योंकि इंडिया में इंग्लैंड के बॉलर स्ट्रगल करेंगे। इवन प्लस क्रिस वोक मेरा फेवरेट है, पर वो भी हाँ, स्ट्रगल करता रहा है। और इन दोनों को एनरिक नॉर्किया और केजी रबाडा को इंडियन पिचेस का एक्सपीरियंस भी है, हाँ आईपीएल खेले लेकिन हुए मैं हैं इन काफी। दोनों से मुतमईन नहीं हूँ, यही दोनों पिटवाते हैं, एनगीडी, मार्को येंसन, ये जरा अच्छी ये, बॉलिंग करते हैं हाँ, लेंथ ये पर। दोनों भी अच्छे हैं, हाँ। हाँ वो पिटवा और देते हैं बड़ी जगहों पे। वो पिटवा देते हैं, ये बात है। सिडनी में शादाब खान ने मारा नोकिया को 20 पे जो 50 किया वर्ल्ड T20 में। इफ्तिखार ने रबाडा को 108 मीटर 111 मीटर कितने का छक्का मारा मिड विकेट पे। हाँ, अरे हाँ, वैसे भाई ये इफ्तिखार को ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं जब इफ्तिखार समझ अच्छा जाओ, परफॉर्म कर रहा है। चलो और मैं फिर तुम्हें भी जवाब ये, देता हूँ। अगर इफ्तिखार 4 पर आया और उसने हाँ। 70 पे 100 कर दिया, तो फिर तो बचना मुश्किल है ना, कि हाँ, तीसरे तब तो, वाले ने क्यों नहीं किया भाई 100 पे 100। हाँ, तब तो सवाल उठ जाएंगे ना। तो इफ्तिखार भी बड़ी गेम चल ऑलराउंडर रही है। बनाया हुआ इन्होंने, बल्लेबाज हाँ, सिर्फ दो ही हैं हाँ, टीम एक में, बाबर बल्लेबाज और तो सिर्फ रिजवान। रिजवान, दो बैट्समैन है, चले बाकी सब तो मजे के लिए खेल रहे हैं वहां पे। ठीक है, चले, थैंक यू हमजा, अच्छा लगा आपसे जी, बात बहुत करके। बहुत आप रहिए शुक्रिया। साथ, दो कोई और भाई सवाल कर जी, ले यार। एक क्वेश्चन है, एक, मैं जी काफी बड़ा फैन रह चुका हूँ आपके दो प्लेयर्स का, जो है जी जी, सैयद कौन है? सैयद अनवर और आमिर सोहेल का, राइट? ओए होए। उस टाइम जो आप लोगों की साइकी होती थी टीम की, जो स्टेबिलिटी फ्रंट से देते थे ये लोग, ऐसे कोई दो प्लेयर्स हैं आपके आज की डेट में सिस्टम में जिनको ओए इग्नोर होए। किया जा रहा है कि वो दे कैंट मेक इट? नहीं नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, साइम अयूब,
और साहिबजादा फरहान, इनके साथ ज्यादती है। साइम के साथ अभी ज्यादती नहीं है, अभी वो नया है। पर देखें, जिसे इन्हें नहीं खिलाना होता है बड़ी चालाकी से उसको अच्छा अच्छा कहते हैं और उसे कहीं पर फंसा देते हैं, किसी छोटी मोटी जगह पे, किसी खड्डे वाली विकेट पे, और हटा देते हैं। साहिबजादा फरहान को उम्र लग गई, 4-5 साल पुरानी बात हो गई कि वो पाकिस्तान कप के फाइनल में 100 मारे, डोमेस्टिक में खूब रन्स करता है। अब तो उसका भी डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो गया शायद डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो हमारे यहाँ सेटिंग होनी बड़ी जरूरी है, जरूरी हर जगह है, इंडिया में भी है, मैं झूठ नहीं बोलता, आपके यहाँ भी है। लेकिन आपके यहाँ एक सिस्टम बड़ा तगड़ा बना हुआ है भाई क्रिकेट का। आपकी जो रणजी ट्रॉफी है, मुझे मालूम है 600-600 रन भी होते हैं, बड़े कमजोर बॉलर होते हैं, बट बॉस वहां पर जो सपोर्ट स्टाफ मिलता है, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स। ऐसा नहीं होता कि आपकी रणजी की, मुंबई की, महाराष्ट्र की, सौराष्ट्र की टीमों के साथ जो है वो शादियां मनाने वाले वीडियो एनालिस्ट लगे हुए होते हैं। प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने कोर्सेज किए होते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है ये। सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। फिर विजय हजारे है, मुश्ताक अली है, हर फॉर्मेट की जो आपकी ट्रॉफी है, T20 की मुश्ताक है, उसकी 50 ओवर की विजय हजारे, मतलब हर फॉर्मेट की ट्रॉफी जो है वो बड़ी कंपेटिटिव है। ऐसा नहीं है कि उसमें दो ही टीमें अच्छी हैं, 4 से 5 टीमें तगड़ी होती हैं, फाइट करती हैं, कभी कोई किसी से हार जाता है, कभी कोई किसी से हार जाता है। तो ये बैलेंस बड़ा जरूरी है। सर ये सिस्टम और प्रोसेस तो आपके भी होंगे पाकिस्तान में, ये सारी चीजें, पर ये बात सर ये है है, कि हमारे यहाँ मसला है कि पिछली गवर्नमेंट इमरान भाई की थी, तो इमरान खान हमारे क्रिकेटर हैं, वो सियासत में भी हैं। खैर हमारे लिए तो वो क्रिकेट के ही हीरो हैं भाई, हमारा सियासत से क्या लेना देना। तो कहने की बात है कि इमरान खान डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के वो कायल ही नहीं थे कि डिपार्टमेंटल बंद कर दो, रीजनल क्रिकेट है। वो ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करते थे, हालांकि ऑस्ट्रेलिया खुद स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, आपको लग रहा है वो तगड़े, भाई वो बस किस्मत है, 4-5 ऑलराउंडर एक साथ है वो, उनके पास कहाँ है ओपनिंग बैट्समैन। वार्नर और हेड के पीछे कौन सा ओपनर दिख रहा है आपको? स्मिथ के बाद कौन सा वन डाउन प्लेयर दिख रहा है आपको? कोई नहीं। वो भी T20 के खिलाड़ी वनडे में बना के वनडे खिला रहे। वो शेफील्ड शील्ड के दीवाने हैं शुरू से। तो उन्होंने भाई रीजनल क्रिकेट पर फोकस रखवा दिया, डिपार्टमेंटल खत्म करवा दिया। अभी नया सिस्टम बना है, दोबारा टाइम लगेगा। और रही बात सईद भाई की, तो सईद अनवर से बड़ा प्लेयर, अगर मैं आपको शेन वॉन मरहूम का सच्चा वाला स्टेटमेंट बताऊं, ठीक है, थोड़ा गलत भी लगेगा कुछ लोगों को, हर तरह के लोग हैं। जब शेन वॉन बहुत ज्यादा आईपीएल में आए और चीजें हुई, उसके बाद उन्होंने बयानात दिए तो वो डिप्लोमेटिक थे, उसमें वो 4-5 नाम लेने लगे। बट शेन वॉन का जो फर्स्ट एवर इंटरव्यू था क्रिकेट छोड़ने के बाद, वो मैंने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। उनसे पूछा था कि कौन आपको लगा टफेस्ट बैट्समैन, उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया था भाई, सईद अनवर। इंजमाम को वो फारिग कर देते थे। पता नहीं इंजी भाई का उनके खिलाफ नहीं चला कभी सिक्का, क्योंकि इंजमाम भाई की फिटनेस में कमजोरी थी ना। तो अब वो लोगों को समझ नहीं आएगा जो क्रिकेट पढ़ नहीं सकते, वो इंजमाम भाई को फिटनेस पे खेल लेता था, क्योंकि उसका ड्रिफ्ट करता था बॉल, उसका फ्लिपर अच्छा था, वो टांग से लेग ब्रेक करता था इंजमाम भाई को, तो वो अपने बॉडी वेट को ही कंट्रोल नहीं कर पाते थे। इंजमाम भाई के अगेंस्ट उसका बहुत खतरनाक रिकॉर्ड है। लेकिन सईद अनवर वो कहते थे कि हर बॉल पे स्कोरिंग रन्स थे उनके पास, हर शॉट था। वो बैठ के स्वीप मार देते थे, पूरा स्वीप मार देते थे, निकल के मार देते थे छक्का, इनसाइड आउट मार देते थे, कवर मार देते थे अगर बाहर फ्लाइट करता था। सईद अनवर बहुत कमाल खिलाड़ी थे, अंडर अचीवर थे वो भी। इंजरीज भी आई उनको, फिर वो अपनी बेटी के इंतकाल पे, छोटी बेटी का उनके इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद वो क्रिकेट छोड़ गए। वरना सईद अनवर जो बीच का टाइम उन्होंने मिस किया, एक दौर में उनकी और सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी 7 होती थी, पर सर यानी ऐसे कंपेटिटिव। ऐसे लोगों को मेंटोरशिप के लिए क्यों नहीं रखा हुआ है, जो लेजेंड्स नहीं, हैं? सईद अनवर अब एक लाइन नहीं बोलते बॉस क्रिकेट के खेल पर, वो कुछ मजहबी तरफ चले गए, वो हर चीज से दूर हो गए जी। वो ना किसी प्रोग्राम में वो कुछ करते ही नहीं है क्रिकेट का। इवन उन्होंने, आमिर सुहेल ने अपना कोई चैनल शुरू किया था, उन्होंने आमिर सुहेल के साथ भी कोई प्रोग्राम नहीं किया। बस वो अब क्रिकेट पर ना बोलना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। समझ गए अब आप? चले कोई और भाई?
ठीक है। 6-7 साल हो गए बाबर आजम को डेब्यू किए हुए, और बाबर आजम, मुझे उसकी बैटिंग जो है क्लासिकल बैटिंग वो अच्छी लगती है, वो टेक्निक वाइज ठीक बैट्समैन है। क्या बाबर आजम क्यों डोमिनेट क्यों नहीं कर पाता है बॉलर्स गुड टीम्स आफ्टर प्लेइंग फॉर 6 इयर्स? मैं स्टार्टिंग में समझता हूँ 2-3 साल 3 से समझ में आता है, अभी वो वर्ल्ड यार का आपका सवाल टॉप मैंने ले बैट्समैन है। लिया। टेक्निक अच्छी है, पर ऐसी टेक्निक नहीं है। अगर ऐसी टेक्निक हो तो भैया इतनी बार इन फ्रंट एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, वो गेंद को पढ़ नहीं पाते। जब तक आप गेंद को नहीं पढ़ेंगे, गेंद पढ़ने के बाद ही टेक्निक का काम है ना। तो बहुत दफा वो भी गेंद को नहीं पढ़ पाते, और बॉल जब मूव होता है तो सबकी टेक्निक फारिग है। दुनिया में कोई भी नहीं है जो मूविंग बॉल को पे बहुत देर तक बच सके। ठीक है भाई, तो पहली बात तो मैंने यही क्लियर कर दी। वासु भाई, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। मैं मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है तो माफ कर देना अगर कोई गलती हो गया तो। नहीं यार, मैं कर लेता हूँ माफ करने वाला। भाई आप बोले, आप बात कर रहे हैं, मोहब्बत है। ओके, तो मैं और मेरे दोस्त ने आपका वीडियोस एक मीम के थ्रू देखना शुरू किया था, जहाँ पे हम लोग को शेयर किया गया था, देखो पाकिस्तानियों ने क्या कर रहा है, रो रहे हैं वो लोग। तो हम लोग बहुत मस्ती में देखना शुरू किया था आपके यार वीडियो, वो लोग बट करते ही यही हैं। उसके बाद सर मतलब हम लोग 2-3 वीडियो आपका देख लिया और हम लोग ब्लाइंड फैन हो गए सर आपका। हम लोग मतलब अभी हॉटस्टार एनालिसिस नहीं देखते प्री मैच, हम लोग आपको सुनते हैं, क्योंकि आप जो मजाक मस्ती करते हो, आप जो सीरियस एनालिसिस करते हो, मजाक में सीरियस एनालिसिस करते हो, हम लोग सब कुछ समझते हैं। और सर हैट्स ऑफ टू यू एंड इफी भाई, ऑल्सो माय कंडोलेंसेस टू इफी भाई ऑल्सो। मेरा जल्दी से मैं सवाल बोल दूंगा, ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा आपका। सर हाँ, इंडिया जीत गया, मैं इंडिया फैन हूँ, आई एम फीलिंग गुड, बट मैं थोड़ा रियलिस्ट भी हूँ सर, और मैं लॉन्ग टर्म पूछना चाहता हूँ एज एशियन एशियन सर। मैं भी समझता हूँ कि आप भी एशियन क्रिकेट को आगे देखना चाहते हो। तो आप रिसेंटली वॉगन ने बोला था कि इंडिया थोड़ा डर के खेलता है, इंडिया थोड़ा स्टैट पैडिंग करता है। और आप भी, मुझे याद है, बोले थे कि राहुल जब वो 350 वाला इनिंग्स खेल रहे थे हम लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो राहुल अपने 100 के लिए थोड़ा सिंगल्स डबल्स ले रहा था, जो कि एक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का बैट्समैन शायद कभी नहीं करता। तो मैं किसने पाकिस्तानियों बोला में था भी ये देख चुका हूँ सर। मैं मतलब रिजवान, राहुल, ये लोग जो जैसे टाइप के प्लेयर्स है, आपको क्या लगता है कि ये इन लोग थोड़ा कभी कभी अपनी टीम के लिए डिट्रीमेंटल हो जाता है? मतलब मैं न्यूट्रल फैन की तरफ ये क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, ठीक नो है बायसनेस। यार। थैंक यू। यार केएल राहुल ने ना जब से बहुत ज्यादा अपनी टेक्निक पे सोचना शुरू किया, जब से थोड़ा सा कमजोर लगा 1 साल में, मतलब उससे पहले के केएल राहुल के स्टेट्स देखो, कोई छूता भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यार मेरा नहीं ख्याल, कमबैक कर रहा था तो बड़ी इनिंग चाह रहा होगा, या विराट कोहली ने राहुल को रोल दिया था। भाई 357 रन बना लिया जिस मैच में, उसमें आप क्या स्टेट पैटिंग कर रहे हो? या आप स्टेट पैटिंग की बात जब करोगे जब आपने अपोजिशन के खिलाफ 50 ओवर में ज्यादातर खेल के बस 2 लोग खेले हो कम से कम 25 से 30 ओवर, वो पेयर, और आपका आखिर में स्कोर आ रहा है 240 या 260। उन्होंने तो 357 किया है, तो आई थिंक के बात तो वहीं क्लियर हो गई। अच्छा, एक मूवमेंट आता है, एक मूवमेंट आता है कि कुछ बैट्समैन उस कंफर्ट जोन में होते हैं कि भाई हम आ गए। तो वो पाकिस्तान से खेल रहे, उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान को 300 रन दिखाओ, 320 रन दिखाओ तो पाकिस्तान ने फिर कुछ नहीं करना। चेजिंग कॉज में नामुमकिन सा हो जाता है हमारे लिए, हमारा जहन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है प्रेशर ना। और ये अभी की बात नहीं है, जो हमारे वाकई में जो ग्रेट्स थे, जिनके पास शॉट्स वॉट्स बड़े ज्यादा थे, इंजमाम भाई वगैरह, इस टाइम पे भी हमारा जो 300 प्लस था, होता भी कम था दुनिया में। लेकिन अगर कभी हुआ है तो एक दफा इंडिया में हमसे बने थे 321, जो 2005 की सीरीज थी, 2-0 हम पहले हार रहे थे, जो धोनी की पहली सीरीज थी। धोनी ने वहां दूसरे ही मैच में 148 की इनिंग खेल दी थी। तो उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार 4 मैच जीते थे, और 4-2 से पाकिस्तान वो वनडे सीरीज जीता था। 6 मैच थे वो। ठीक है, तो पहले 2 मैच में तो सहवाग ने और धोनी ने, दूसरे में धोनी का बड़ा 100 है, पहले में सहवाग है, फिर दूसरे में सहवाग के कम रन है लेकिन धोनी का बड़ा 100 है। तो वो इन लोगों ने बड़ी मार मारी थी। फिर 4 मैचों में पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त बाउंस बैक किया था। उसी सीरीज के 5वें मैच में शाहिद आफरीदी की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी आई थी 45 बॉलों पर। तो कहने की बात यह है कि भाई ऐसा नहीं है। स्टेट पैडिंग के लिए मुझे राहुल कभी नहीं लगा खेलते हुए। समटाइम्स मतलब बैट्समैन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेता है। वो ये लेता है कि मैं 5.5 महीने के बाद क्रिकेट में आया हूँ, तो यार 5 रन रह गए हैं, 6 रन रह गए, इनको जरा सा मैं धीमे से बना लूं और 100 करके मैं रिस्क लूं। यानी रिस्क पे आप जा ही रहे हो, 1 ओवर पहले जा रहे हो, वो ये सोचता है यार 1 ओवर बाद में मारना शुरू कर दूंगा। तो ये ठीक है, इतना चलता है। लेकिन वो क्या आपको चाहिए 300 रन?
आप 10 ओवर में बना रहे हो 50 फॉर नो लॉस या 45 फॉर नो लॉस, और फिर जब एक्सलेरेशन का टाइम आए और आप आउट हो जाओ, तो आई थिंक कि ये जरा सही नहीं है। और वो जो आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट से समझा दूं, जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में लोग इतना भी मार्जिन नहीं दे रहे, तो कम से कम राहुल को, रिजवान से तो मुझे नहीं है उम्मीद, लेकिन केएल राहुल को चाहिए कि वो समझे कि यार वो भी बड़ा सीनियर प्लेयर हो चुका है इस टीम का, क्योंकि लोगों के बहुत ज्यादा हैवी क्रिटिसाइज करने के बावजूद भी राहुल को ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं होते ये लोग। तकरीबन 1.5 साल से वासिफ भाई देख रहा हूँ आपको, और और क्रिकेट जो है वो तकरीबन काफी अरसे से देख रहा हूँ। 2011 का मुझे वर्ल्ड कप याद है, लेकिन वही इमोशन वाले फैन थे हम, कि इमोशन इमोशन का। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है सीखने को, ऐसा ऐसा क्रिकेट सीख रहे हैं। जी तो अभी वासिफ भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो एशिया कप में हमारे साथ हो गया जो हाथ, तो अभी जो है आगे वर्ल्ड कप में हमारा क्या फ्यूचर है? वर्ल्ड कप में क्या फ्यूचर है सर? अच्छा तो जी नहीं लग, साफ बात है, अच्छा तो नहीं लग रहा। अनहोनियां भी क्रिकेट में स्किल होने पर होती हैं, और जी अगर वासिफ ये भाई। फखर को भी बिठाने जा रहे हैं तो तेज रन कहाँ से आएंगे? अच्छा तो यही हो सकता है कि इनको जितना भी आता है, मैं होप वाली बात बता देता हूँ कि उम्मीद क्या हो सकती है। इन्हें जितना भी आता है खुल के खेलेंगे, ये तय कर लें कि यार यहाँ तो 230 पे ऑल आउट हो जाएंगे या फिर 320 करेंगे, इससे नीचे बात नहीं करेंगे। जी वासिफ भाई उस दिन जो इंडिया के साथ हमारा सुपर 4 में मैच हुआ है, उसमें जो हमने कोशिश ही नहीं की। इंटेंट होता है, कुछ बंदे की प्रैक्टिस होती है, कुछ कम से कम चेज नहीं होने वाला टारगेट था। अब ट्रू क्रिकेट फैन है, थोड़ा बहुत हिसाब किताब भी लगा लेते हैं, तो इसलिए ये तो पता था कि शायद चेज ना हो, लेकिन कोशिश तो की जा सकती थी ना। हमने कोशिश भी नहीं की, तो उस टाइम तो फिर पूरा दिन भी यही सोचते रहे हैं, रात भी यही सोचते रहे हैं। काम काम धंधा छोड़ के बंदा बैठता है क्रिकेट देखना है। फिर उसके बाद फैंस का तो फिर क्या हाल होता है, आप तो मेरी मतलब इस हालत का अंदाजा अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। जी जी वासिफ भाई एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछें। हम आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है उसके अगेंस्ट में इंडिया ही नहीं काफ़ी टीम के प्लेयर राइट हैंडर बैट्समैन होते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चाइनामैन या फिंगर? लेफ्ट आर्म स्पिनर, नहीं नहीं, एक तो चाइनामैन होता है लाइक फिंगर फिंगर कुलदीप, एक फिंगर 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 होता फिंगर है। फिंगर फिंगर ना, फिंगर हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो सबको पता है, आपको भी पता है कि उसका बॉल एंगल के साथ अंदर आएगा, तो और बाहर फिर पड़ के बाहर निकलेगा। बाहर तो बहुत कम बॉलर का निकलता है, मोस्टली अंदर ही आता है सबका। तो फिर भी नहीं नहीं नहीं, आप असल में आप एनालिसिस करने लग गए जयसाल नहीं भाई। नहीं सर, नहीं सर, ये मैं बात नहीं नहीं नहीं, मैं सर बात मैं ये है, बात ये है, अब सुने तो, मुझे तो सुने, आप ठीक हाँ कह रहे हाँ हैं, लेकिन जी एक पॉइंट जो आप मिस कर रहे हैं, मैं समझ हाँ गया हूँ सर, समझ। मैं सुनते सुनते आपका जहन पढ़ लिया है मैंने। नहीं 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 आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो एक आम बॉल है, हाँ आम बॉल मसला करता है, तो भाई वो आम बॉल ब्रेक वाले बॉल के खौफ में मसला करता है। ब्रेक हो अगर तो बैट्समैन को ये पता चल जाए कि सारी बॉलें अंदर ही आनी है, तो हम्म फिर वो स्पिनर पिटने लग जाएंगे। बट एक आधा बॉल जो हल्का सा ब्रेक करता है ना, उसमें फंस उसके जाता है। बाद वो अच्छा पैदा होता है, बल्लेबाज बाहर से ज्यादा बल्ला लेके आता है। वो हम्म दोनों चीजें कवर करता है कि अगर ये स्पिन हुआ तो मैं ऐसे खेल दूंगा, अगर ये आम बॉल हुआ तो मैं ऑफ द विकेट रीड करना कहते हैं इसको, कि ऑफ द विकेट रीड करने के चक्कर में होता है बंदा और फंस जाता है। हम्म, हाथ से नहीं पकड़ पाते लोग आम बॉल को, लेफ्ट आर्म स्पिनर की। और अगर आपने डेनियल विटोरी को लाइव देखा हो, तो देखा है। आपको मैं बताऊं, बहुत शदीद उसका आम बॉल होता था। इमाद वसीम का मैं आम बॉल तो नहीं कहूंगा, इमाद वसीम का वही बॉल ज्यादा है, इमाद वसीम का सरप्राइजिंग बॉल लेग ब्रेक होता है। इमाद वसीम का तो आधा मीटर अंदर आता है वो बॉल। जी तो चले, सर शुक्रिया, कोई और भाई? जी थैंक यू सर। क्वेश्चन ये है वासिफ भाई के, कंसिडरिंग इंडियन कंडीशंस, वहां पर हमें ऐसा तो नहीं मिलेगा कि हर पिच जो है वो सीधी होगी, कहीं पे जो है वो हो सकता है कि ड्राई कंडीशंस हो तो बॉल ब्रेक हो। तो इसमें जो है अभी तक अफगानिस्तान की जो टीम है, अफगानिस्तान की टीम के बारे में अभी तक जो है वो इतना डीप एनालिसिस हमें नहीं मिला। तो आपका क्या ख्याल है कि अफगानिस्तान की टीम जो है अपने, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका स्पिन अटैक ही है,
तो उसकी बेस पे वो इस वर्ल्ड कप में कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस काफी इंप्रूव की हैं और अब वो जो है वो टॉप की टीम्स के साथ हार्ड मैचेस खेल रहे हैं, उनको टफ टाइम दे रहे हैं। तो आपका इसमें क्या ख्याल है कि वो किस लेवल तक इस वर्ल्ड कप में प्रोग्रेस कर सकती है अफगानिस्तान की टीम? अफगानिस्तान की टीम, यार मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सेमीफाइनल खेल जाएंगे, बट आई मस्ट से आप सुन ही रहे साथ भाई और बाकी सारे लोग कि अफगानिस्तान नूर अहमद को छुपा के बैठा हुआ है। पाकिस्तान की वनडे सीरीज में भी नूर अहमद के बगैर नसीम शाह के तक आ गए ये और फिर हार गए। चौका लग गया, इनसाइड आउट लग गया उससे। शादाब ने 35 पर 48 किए, चलो वो तो समझ आता है कि शादाब करेगा, लेकिन नूर, राशिद, मुजीब और नबी भी जितनी बॉलिंग कर लेते हैं, आई थिंक जब ये सब मिलके चेन्नई वगैरह की पिच पे खेलेंगे तो ये बड़ा जबरदस्त देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में खतरा है, मैं बहुत अरसे से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मैच चेन्नई की विकेट पर है। वैसे भाई मैंने भी ये बोला है कि पाकिस्तान इंडिया को भले हरा दे, अफगानिस्तान से उन्हें ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो रैंक टर्नर पे मैच है और अफगानिस्तान का नूर अहमद कुछ भी कर ये सकता है। वो बंदा, वो उसकी ये स्पिन वो देखी नहीं, है मैंने। राशिद उधर, राशिद भी बहुत कुछ कर सकता है भाई। राशिद तो है ही इस एरा का बेस्ट स्पिनर है, वो तो उसकी तो हाँ, बात ही अलग हो गई। इंडिया का क्या कह रहे हो तुम? पाकिस्तान इंडिया में क्या हो सकता है? इंडिया को वो भले हरा दे क्योंकि वो फ्लैट भले विकेट हरा मैच है, दे। लेकिन मतलब एक बात बोल रहे हैं, अब वो तो इतनी अब सब इतनी एक्सपोज हो गया इतनी है। इतनी अब तो फ्लैट नहीं है जितनी तुमने बना दी है। स्पिन होता है वहां बॉल, ऐसा स्पिन नहीं है, होता नहीं है, होता। होता है सीम लेकिन सीम भी होता है नया बॉल। नया बॉल होता है 5-6 ओवर। नहीं नहीं, ज्यादा भी होता है, अगर बॉलर अच्छा हो तो होता है। अगर बॉलर वर्ल्ड क्लास है तो नहीं होगा। हाँ, अगर वर्ल्ड क्लास कमजोर बॉलर बॉलर है तो हो है। जाएगा। हाँ, हाँ, सीम सीम नहीं थोड़े होता ना, वर्ल्ड कमजोर हैं क्लास तो का हाँ फिर नहीं हाँ। होता। वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के लिए ना अलग विकेट्स बनाई जाती हैं, मतलब हाँ, अलग नहीं, उनके लिए बादल ऊपर लाके रखो, पहले बादल का टुकड़ा, फिर स्विंग होगी। फिर स्विंग चलो, होगी। आ जाओ कोई और भाई, आ जाओ। वासे भाई, वर्ल्ड कप के अंदर आपकी क्या प्रिडिक्शन है कि कौन कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी? हाय हाय यार, ये प्रिडिक्शन नहीं होती, ये तुक्का होता है। मैं तो मैच देख के बताता हूँ, पिचेस देखकर जरा बॉडी लैंग्वेज भी देख लेता हूँ, तो पहले ही बोल देता हूँ कि भाई कौन जीत रहा है। जैसे ताजा मिसाल मेरी परसों है, मैंने कह दिया था मिड ब्रेक में पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। हालांकि श्रीलंका मुझे दलील कराने पे तुल गई थी। शनाका खुद ऊपर आ गया था, शनाका की पूरी ख्वाहिश थी कि फाइनल इंडिया पाकिस्तान का हो, लेकिन उसके 2-3 बच्चों की नहीं थी ये, उन्हें पता नहीं था, वो सेटिंग में नहीं थे। वरना बात तो मेरी ही ठीक थी कि पाकिस्तान ये मैच कम से कम 2 ओवर पहले हारेगा। वासे भाई, फिर भी कोई प्रिडिक्शन दे दें, पाकिस्तान को लाजमी यार, इंक्लूड कर लें। इंडिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये सेमीफाइनल में तो निकल जाएंगी। अब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इन तीन में से कोई दो और आएंगी सेमीफाइनल में। मैं न्यूजीलैंड को राइट ऑफ नहीं करता, क्योंकि विलियमसन आ जाएगा, चैपमैन को उन्होंने डाल लिया, और जो आदमी मैं बहुत अरसे से चीख रहा था इसे बाहर निकाल दो। देखिए, बड़े फैसले क्या होते हैं, अब सुने, फिन एलन का बड़ा नाम है न्यूजीलैंड में, बाहर भी है, आईपीएल में भी बिका था, लेकिन उसका खेल बड़ा कमजोर है, बॉल हल्का सा स्विंग होगा वो पैड पे खा जाता है। तो देखो, उन्होंने टफ डिसीजन लिया, उन्होंने विल यंग शायद रख लिया है, चैपमैन भी रख लिया मिडिल में, और विलियमसन क्योंकि वापस आएगा, उन्होंने फिल एनल एलन को हटा दिया 15 में से। तो जो टीमें फैसला करती हैं ना टेक्निकल चीजों को देखते हुए, वो कामयाब होती हैं। फिर ये कि मिचेल सेंटनर भी है, और वो भी है दूसरा स्पिनर, और फास्ट बॉलिंग में तजुर्बा है। ऑल्दो टिम साउदी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कभी कोई बहुत ही फायरी वायरी स्पेल करेगा, सबको ही पता है उसका पेस नीचे है। बोल्ट अच्छा करेगा, कर सकता है, अभी कर रहा है इंग्लैंड में भी। और उसके अलावा अगर जो दूसरे लोग हैं इनके, जेमीसन, उनको भी डाला है, अब देखें, हु नोस, बट विलियमसन के अंडर न्यूजीलैंड हमेशा मेगा इवेंट में बॉस compete तो करती है। 2 फाइनल आखिरी खेले उन्होंने और दोनों बार हार गई है। पिछला वाला तो वो जीत गए थे, अगर बेन स्टोक्स की डाइव होती और बॉल लग के नहीं जाती तो वो तो कहानी तो हो गई थी। जी, तो आई थिंक मैंने आपको ये 5 टीमें ऐसी बताई हैं कि इनमें से कोई सी 4 चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल नहीं चाहता कि पाकिस्तान ना जाए, मेरा भी चाहता है, बट मुझे ऐसा
जो भी कुछ ये सिलेक्ट करें, फिर भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा यार इस कारकर्दगी पे नहीं। अगर ये एशिया कप जीतते भी, मैं तब भी यही कहता, इंडिया में पाकिस्तान पर बहुत अलग लेवल का प्रेशर पड़ेगा। सवाल ये वैसे भाई कि उस रात जब पाकिस्तान श्रीलंका से हारा तो सब हम तो बहुत ही डिप्रेस थे जो रियल फैंस थे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई किसी का फेवरेट बाबर हो, शाहीन हो, रिजवान हो या जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जीतता है, पाकिस्तान हारता है। हाँ तो हमने मतलब कोलंबो में तो देख लिया, लेकिन एटलीस्ट एज अ पाकिस्तानी फैन हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से हैदराबाद में हार जाए, और ना ही हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से बेंगलुरु में हारे, और ना ही इंडिया से अहमदाबाद में हारे। हत्ता कि अब तो इंडियन टीम बहुत ही मतलब बैंड वैसी से भी बन गई बेंगलुरु में मैच है। एग्जैक्टली। तो और जो इंग्लैंड ने आज स्क्वाड अनाउंस किया और हमारा उनके साथ कोलकाता में मैच है, तो वो स्क्वाड तो ऐसे लग रहा है कि 1 नंबर से लेके 11 नंबर तक सारे के सारे हिटर्स ही हैं। उनका तो पता नहीं, अल्लाह ही हाफिज कि वो क्या करते हैं। बैटिंग ताकत है उनकी, बॉलिंग में कमजोरियां मौजूद हैं। उनकी बॉलिंग को मारना होगा हर टीम को। मैं एक मैसेज है मेरी तरफ से कि इंग्लैंड की बॉलिंग को जितना मार सकते हैं उतना मारिए, बस यही चांस है आपका उन पे, क्योंकि उनके पास इतने सारे लोग हैं। कोई एक आधा बंदा चलेगा तो दो भी चलेंगे तो उनका काम बन जाएगा। जी बिल्कुल। वैसे भाई एक क्वेश्चन बस यही है सीधा सा, कि अभी हमारी जो मतलब नसीम शाह तो ऑलमोस्ट अब तक पीसीबी ने शायद डिक्लेयर नहीं किया, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से डेफिनेटली वर्ल्ड कप तो एटलीस्ट मिस ही कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस तो नहीं खेल सकते, वो पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अभी ये पीसीबी कहेगा। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में तो नसीम शाह की फ्यूचर के साथ खेलना भी नहीं चाहिए। एज अ क्रिकेट फैन हम तो चाहेंगे कि वो अगले यार T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया ने बुमराह ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए या हमारे लिए नसीम, ये बता दे। बुमराह का नाम बड़ा है ना और पुराना है, तो भाई बिल्कुल इंडिया ने बुमराह के लिए 1 साल से वेट किया। रोहित शर्मा ने कहा उसकी जिंदगी अजीज है भाई, हमें T20 में मैं उसे ले जाऊंगा, कोई आम मैच खिला दूं तो मैं उस बेचारे के साथ गलत करूंगा। तो बात कप्तान तो बॉलर को बचाता है, आपका कप्तान तो बॉलर को खराब करता है कि नहीं भाई तुम आओ मेरे कमरन डिफेंड करो, चलो शाबाश। बस अब वैसे भाई इस पे हम कमेंट ही कर सकते हैं। अब उनको साथ जबरदस्ती लेके जाएं या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिहाज से अगले T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अगर उसके लिए उसको कॉटन गुल करके रखें तो पाकिस्तान का ही फायदा है, लेकिन डिसीजन तो उनका ही है। जी वैसे भाई क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है, इवन अगर मैं शाहीन को भी देखूं तो वो जो यूएई का T20 वर्ल्ड कप है उसमें शाहीन शाह अफरीदी लगे, उसके बाद जो इंजरी हुई है, तो अभी भी जब हमने उनके रिसेंट स्पेल देखे तो पहले 2-3 ओवर उनकी स्पीड ठीक थी, उसके बाद वो दोबारा से 133 135 पे आ गए थे। सो भाई अब पता नहीं वो वो बॉल पढ़ने, 100%। वो बॉल सुने आप जरा, वो बॉल पढ़ने की स्पीड है। जी जी और जब आप अगर मैच टीवी पे देखते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप स्टेडियम में, मैं जाया करता था जब कवरेज के लिए, तो आजकल तो नहीं जाता, तो स्टेडियम में आप देखेंगे तो आप कुछ चीजें मिस करते हैं। टीवी पे मैच इसलिए देखें कि आप एक एक बात पढ़ सकते हैं। आप ये नोट किया करें नेकेड आई से, जब बॉल गिरता है तो किस बॉलर का बॉल बल्लेबाज को जल्दी लगती है खेलते में कि ये जल्दी आ गया, ये भी पिक होता है। वहां की स्पीड नहीं आती, ये सिर्फ बॉल गिरने तक की स्पीड आती है। तो मैंने जो ऑफ लेट ऑब्जर्व किया है, शाहीन का बॉल गिरने के बाद बहुत टाइम होता है। जी बिल्कुल। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मेरे जो बाबा हैं वो डॉक्टर हैं, तो हम क्रिकेट हमेशा मिल बैठ के देखते हैं जो बड़े मैचेस हैं। तो जब अभी इंडिया के खिलाफ जब दूसरे दिन हमारी बॉलिंग थी और जब शाहीन बॉलिंग कर रहे थे कोहली को राउंड द विकेट, तो मेरे बाबा ने ऑब्जर्व किया, वो कह रहे थे यार ये जो भाग रहा है ना इसका रनअप, ये वो वाला रनअप नहीं है जो इसका शुरू में होता है, ये कुछ प्रॉब्लम इसको शायद है। बाद में वैसा नहीं है, और हाथ भी पूरा ऊपर से नहीं लाता, वो साइड से करके ला रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ही इज नॉट वेल। मैंने तो ये इशारा दे दिया है कि वर्ल्ड कप के 2-4 मैचेस के बाद आपको शाहीन का भी पता चलने वाला है। इसका ये एग्जैक्टली मतलब नहीं है कि हम उसको बेचारे को कोई अनफिट कराना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने ये इशारा दे दिया है दुनिया को। मैंने देखिए टीवी देखिए पे भी कह दिया है, मैं टीवी की वैसे भाई ट्रांसमिशन में भी कह चुका हूँ। देखिए बात ये बात है कि वर्ल्ड कप जो है वो कम से कम हर टीम ने, हमने तो 9 मैचेस खेलने ही खेलने हैं ना, तो जी जी। जरूरी तो नहीं कि वो 9 के 9 शाहीन अफरीदी खेले। पर इस पे तो पाकिस्तान में तो यही यही पोर्ट्रे किया जा रहा है ना कि शाहीन, नसीम और हारिस, यानी इनके बगैर आप किसी भी टीम को, भाई आप हरा ही नहीं सकते ना। आपने अफगानिस्तान के खिलाफ
आपने किसी को मौका नहीं दिया जब तक सीरीज नहीं जीत ली। भाई वसीम जूनियर पहले काफी खेल रहा था, अब क्या हुआ कि अब आप उसे बिठाए में और आप बाहर से बॉलर ढूंढ रहे, उसे खिलाओ यार। नसीम नहीं था तो, हारिस नहीं था तो वसीम को पक्का खिलाते, एक बॉलर मंगा लेते, पैनिक बटन दबाया। वो शाहनवाज दानी को तो सिर्फ आपने फ्लाइट ही फ्लाइट घुमवाई है, उसने हर फ्लाइट का नाश्ता कर लिया, बस ये हुआ है। बिल्कुल, वो उनकी फ्लाइट का देखा भी था। अभी वैसे भाई एक क्वेश्चन, सॉरी मैं जल्दी क्वेश्चन पे आता हूँ। एक क्वेश्चन ये है मेरा कि आपके ख्याल में जो वर्ल्ड कप की हमारे स्क्वाड आने वाला है उसमें हमारी फास्ट बॉलिंग में कौन कौन होना चाहिए? हम ये माइंड से निकाल देते कि नसीम शाह टोटली अनअवेलेबल है। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हारिस रऊफ जो है वो हमारे एटलीस्ट T20 की एक स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो टेस्ट मैच एक ही खेले पिंडी में, और वो मैच स्टेडियम में बैठा हुआ था और वो मेरे सामने इंजर्ड हुए, फिर वो वापस टेस्ट क्रिकेट में आई ही नहीं है। वो जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो। अगर आप वीडियो सुनते हैं भाई, मैंने कल भी इसका हवाला दिया कि 14 ओवर करा के टेस्ट से ऐसा गया, बल्कि टीवी की भी मैं वीडियो का ट्वीट पे लिंक देता हूँ। तो मैंने वहां भी ये बोला कि भाई वो तो 14 ओवर कराने के बाद ऐसा गया इंग्लैंड के खिलाफ, फिर आया ही नहीं, दिखा ही नहीं फिर वो। एग्जैक्टली वो मतलब तो पिंडी पे फर्स्ट वापस नहीं ना आया, बॉस, मुल्तान हारिस ट्रांसफर रऊफ हो के पीछे तो लिस्टें भी नहीं है, शाहीन के पीछे तो बहुत कुछ था फिर भी, इसलिए चल रहा है। बट भाई गया। शाहीन आफरीदी की फिजिकल फिटनेस भी मुझे भी ठीक नहीं लगती, इवन पहले स्पेल में भी वो वाली नहीं लग रही जो कुछ अरसे पहले होती थी। अब मसला एग्जैक्टली है हमारे यहाँ जब चीजें जब तक होती नहीं है ना, तो वो जो जाहिल फैंस होते हैं सोशल मीडिया पर, क्रिकेट के जाहिल, जी उनको जी। छोड़ दिया जाता है। प्लेयर्स के एजेंट होते हैं वो लगाते हैं लोगों के पीछे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अब लोगों की आंखें खुल रही हैं। आप भी यहीं से हैं, पाकिस्तान से, अभी जैसे हमजा बात कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, वैसे भाई हम तो यहीं से क्रिकेट बचपन से देख रहे हैं कि मतलब तो हमारे आज पास जो है क्रिकेट कि के अगर लिए। हमजा ने भी, अगर आपने हमजा को सुना हो, उस वक्त ज्वाइन कर ली हो आपने, जी जी। तो अगर आपने हमजा को सुना हो तो हमजा क्या कह रहे थे? हमजा यही कह रहे थे वहां से भाई, हमने देखा तो हमें ये लगा कि यार आप लोग का ऐसे क्लिप काट के सोशल मीडिया पे लगाया जाता है कि हम समझे कि आप लोग जो है सिर्फ उड़ाते हैं या तफरी करते हैं। तो मैं आपकी वीडियोस पर आया, लेकिन कह रहा है मैंने 3-4 दफा आपको सुना। तो जब सुना तो मैंने कहा कि यार ऐसी ऐसी बातें तो कोई भी नहीं बताता क्रिकेट की जो आप बता रहे हैं। तो वैसे भाई भाई मैं आपको। बैटिंग से शो नहीं चलता, हमारे शो में ह्यूमर है और वो नेचुरल है, लेकिन बैशिंग भी हो जाती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है। मैं खुद कभी कभी शो बंद करके कहता हूँ, आपस में हम बात करते हैं कि यार इफ़ी भाई ज्यादा हो गई, वो हो जाती है। लेकिन लेकिन ऐसा तो नहीं है ना पर्सनल है भाई, होती किस पे जब आप खराब वैसे भाई खेले हुए, वैसे भाई जब मैं आप आपको एक खराब बात खेले बताऊं। वो तो होगी भाई। पाकिस्तान के वैसे मैं मुलाजिम हो भाई, तुम लोग सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान हो, पैसे मिल रहे हैं तुम्हें। वैसे भाई बात ही कि मैं पर्सनली आपको एक बात बताऊं कि जब कोई एनालिस्ट बात करता है ना, तो एक चीज होती है बैश करना, एक होता है इंसल्ट करना। आप लोग इंसल्ट बिल्कुल नहीं करते, आप पाकिस्तान के मफाद में और उस प्लेयर के मफाद में बात करते हैं, मैंने ये फील किया है। कुछ लोग बात करते हैं बदनीयती से, वो बदनीयत होके दूसरे बंदे की अरे ना हमें इंसल्ट। तो क्या क्या होता है, मैं अब क्या क्या बताऊं, अभी यहाँ हर हर चीज नहीं बता सकता। एग्जैक्टली बस मैं नहीं, मैं आपके पॉइंट समझ गया हूँ। कुछ तो मैं लोगों तो के आपको सब लिफाफे कुछ। जिन जगहों से पक्के होते हैं, बस उनको वही अच्छा लगता है। हेलो वासिफ भाई, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर। और बोलिए। जी वासिफ भाई, मेरा ये सवाल था कि जैसे सुपर फोर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ, तो ऐसा हम्म। लगा कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग पिच है, सेकंड इनिंग में ऐसा लगा कि प्योर बॉलिंग पिच है। और हम्म। जैसे आज फाइनल हुआ, तो आज का फाइनल में ऐसा लगा कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग पिच है, सेकंड इनिंग में लग रहा है बैटिंग पिच है। ऐसा हम्म। डिफरेंस। और दूसरा सवाल ये कि आज के फाइनल मैच में आपको वो चीज क्या लगती है कि ये मैच की सूरत बदल सकती थी, कि मतलब श्रीलंका के फेवर में ये मैच जा सकता? यार असल में बदल तो वहां सकती है मैच जब आपका कोई पार्टनरशिप लग गई हो, फिर कोलैप्स हुआ हो। भाई देखिए, श्रीलंका का जो भी बल्लेबाज दुनिया में किसी भी विकेट पे पहली बार बैटिंग करने आता है ड्रेसिंग रूम से, तो पहले जी जी। 10 बॉल्स उसके बड़े अहम होते हैं। अब हुआ क्या कि गुड बॉलिंग और पुअर शॉट सिलेक्शन दोनों का हाथ है। जैसे असलंका के लिए शॉर्ट पॉइंट भी लगाया गया, एक दो फील्डर लगाए गए पॉइंट रीजन में, तो उसने जी अपिच जी। खेल दिया। अच्छा, डर उसे यही था, बॉडी से दूर तो खेला वो, डर उसे स्विंग का ही था कि ये बॉल अंदर ना आ जाए, क्योंकि आज जाने वाला बल्लेबाज आने वाले बल्लेबाज को ये बताता है कि बॉल कितना हिल रहा है। ये तो है।
और शायद इसका मतलब वो भी था कि जैसे अभी आपने एक भाईजान को पहले बोला कि दूर से नंगी आंखों से देखने से वो चीज नहीं होता, जितना मतलब वो बल्लेबाज ही कन्वे कर सकता है ये मैसेज। जी, जी जी, बस यही सवाल था बासिल भाई, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप। थैंक यू। मैं बांग्लादेश से हूँ। जी सर, मुझे अफरीदी का बॉलिंग देख के ये लग रहा था कि वो इंजरी शायद कैरी कर रहा है, उसका जो इंजरी अपर आर्म में था, जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्योंकि उसका जो ऊपर से देखिए आप बॉलिंग में पुराना बॉलिंग दिखता था वो थोड़ा, जी हाँ, वो एक्शन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है उसका। हाँ ये भी कह सकते हैं कि उसने बदला है, लेकिन अगर बदला है तो क्यों बदला है? इसका मतलब वो पूरा ऊपर से जोर, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जोर की कमी है। स्विंग तो मिल जाता है उसको जब कंडीशन हो, बट ऑफ द विकेट उसका पेस उतना नहीं निकल रहा पड़ने के बाद बॉल जितना निकलता था पहले। ठीक ठीक पकड़े हैं आप। मैं एक्चुअली जो मेडिकल जो यूके में रिहैबिलिटेशन के लिए था, उसका मेडिकल बुलेटिन में देखता था, उसका डॉक्टर्स ने उसको एडवाइस दिए थे कि ऑपरेशन करने के लिए। मुझे जहां तक याद है वो कुछ मेडिकल, और डॉन न्यूज़पेपर का स्पोर्ट्स पेज देख रहा था मैं, तो जी जी, उसने ऑपरेशन क्यों नहीं किया? लाइक मुझे पता नहीं, आपको कुछ आइडिया है ऑपरेशन? सर्जरी हुई थी ना उसकी, उसका रिहैब कराया था ना। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, ऑपरेशन के बाद बंदा पूरा भी बैठ जाता है ना। ओ देखिए, आपको याद होगा, पता नहीं आप हमारा शो कब से सुन रहे जी हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने ये जरूर बोला था मैंने ये जरूर बोला था कि ये जो घुटने की जो इंजरी है, ये जो नी लाइगामेंट इंजरीज होती हैं, ये बड़ी डेंजरस होती हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से ज्वाइंट आके मिल रहे होते हैं। और इस इंजरी का एक बार शिकार होने वाला बॉलर बार बार शिकार हो सकता है, क्योंकि वो बॉलर है। बॉलर तो बहुत खतरनाक है, बल्लेबाज के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन बॉलर के लिए तो बहुत सस्पेक्ट हो जाता है वो बॉलर। तो ये कह लें कि बहुत लॉन्ग टर्म तक लगातार क्रिकेट खेलना ऐसे किसी भी बॉलर के लिए, नॉट ओनली फॉर शाहीन, किसी भी बॉलर के लिए जरा हानिकारक ही साबित होता है। अच्छा, अगर किसी का सवाल नहीं है तो देखिए, पाकिस्तान टीम बड़ा अच्छा टीम है, शायद मैच हार गए होंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम है ना, क्लियरली आता है कि नंबर 4 बैट्समैन जैसे इंडिया का केएल राहुल है, वो प्रॉपर बैट्समैन है, एक्चुअली वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। हम्म, पांड्या भी अच्छा बैट्समैन है। See, देखिए मैच में एनी टीम कैन लूज और विन, तो वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान का खामी मुझे बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कमिंग नंबर 4 बैट्समैन पे लगता है। कोई प्रॉपर नहीं है, मतलब जो बैट्समैन सब डाउन हो जाए। जी हाँ, आपको क्या लगता है? ऐसा ही है सर। मैं तो बताता हूँ वीडियोज में यही, कि मेक शिफ्ट लोगों से काम नहीं चलता, मेक शिफ्ट लोगों से गाड़ी नहीं चलती। वासे भाई, पंकज बोल रहे हैं। हाँ, पंकज बोले। वासे भाई, इंडियन टीम के हवाले से एक खबर है कि राहुल ने शतक मार दिया, ठीक है। अब क्या स्पिन ट्रैक क्या क्या है? पे स्पिन ट्रैक पे श्रेयस अय्यर के पहले राहुल को ही मौका मिलेगा हमेशा? यार, ये तो अब टीम इंडिया की जो टीम मैनेजमेंट है वो जिसको बेहतर समझती है, जी वो वो फैसला करेगी। देखें, ऐसा नहीं है कि राहुल स्पिन को बुरा खेलता है। राहुल तो बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूँ, उसके बैट पैच में भी कहता हूँ कि उसको जरा डिफेंसिव प्ले में ज्यादा थॉट प्रोसेस उसे मार रहा है। लेकिन यह है कि राहुल तो ओपनर है, राहुल 5 पे भी परफॉर्म कर चुका है काफी। इसी तरह अगर आप उसको देखें, श्रेयस अय्यर को, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जो तेज बॉलर की शॉर्ट बॉल होती है वो उसकी कमजोरी है, वो उसकी वीकनेस है हमेशा से। आई वॉज द वन कि मैंने उसकी वो वीकनेस बताई 2019 में पहली बार किसी जगह, जब उसने 50 किया था, वेस्ट इंडीज आई हुई थी इंडिया, बैक टू बैक 50 किए थे। मैंने कहा इसको पीछे की गेंद पे मसला होता है, ठीक है। फिर ये जब 1-1.5 साल बाद निकल के न्यूजीलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो फिर ये बातें हुई। तो कहने की बात है कि दोनों ही इंडिया में इन्वेस्टेड प्लेयर्स हैं। तो आप इसको पॉजिटिव ऐसे लें कि जिस पिच पर जो अच्छा समझा जाएगा वो खेलेगा। लेकिन जो मैं माइंडसेट पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया श्रेयस अय्यर को जाया करेगा। उस पर इन्वेस्टमेंट है, बनेगा, वो आगे चलेगा। जी। वैसे भाई, मैं आपका बहुत बहुत पुराना टाइम से फैन हूँ,
और बहुत टाइम से सुन रहा हूँ आपको, और आपकी इंडिया में बहुत इज्जत है। मतलब जो आपके सब्सक्राइबर है वो उसको जस्टिफाई नहीं करते, बट आपका बहुत एहतराम है, आपका और रेफे भाई का। तो मैं सबसे पहले सवाल पूछ लेता हूँ, 2 क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हमें मालूम है कि पाकिस्तान में मसला है बैटिंग का, और मतलब एक प्रॉपर जो होता है ना, एक सॉलिड बैट्समैन जिसके पास सारी रेंज हो, सारे शॉट्स हो, तो ये पाकिस्तान का मसला है काफी टाइम से। और हिंदुस्तान का मसला अभी कुछ टाइम पहले तक था फास्ट बॉलिंग, अच्छी फास्ट बॉलिंग। मतलब जहीर खान एक ऐसा लगता था, उसके आसपास मतलब वैसे बॉलर नहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हिंदुस्तान ने कहीं ना कहीं उस चीज को कवर कर लिया है? मतलब हमने अपनी उस जो हमारी कमजोरी थी उसको हमने पकड़ लिया है। मतलब अब हमारे पास सिराज है, शमी है, और बुमराह तो है ही है। मगर आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया? वो उन्होंने अपने सॉलिड बैट्समैन जो चाहिए थे वो अभी तक वो क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं? या क्या ऐसा कि पीछे से डोमेस्टिक में या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो प्रॉपर 2-3 सॉलिड बैट्समैन नहीं आए? मतलब 24-25 करोड़ में जो भी क्रिकेट खेलते होंगे, तो कहीं ना कहीं अब तक ढूंढ लेना चाहिए था। मुझे लगता है वो उसमें पीछे रह गए, तो उसका क्या वजह है? ये पहला क्वेश्चन है, और इसके बाद मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। प्लीज पहले आप इसका आंसर दें। ओके वासी भाई, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सूर्य कुमार यादव इतना बड़ा T20 का बैट्समैन है, और हम तो मतलब एज एन इंडियन हम ये सोच रहे थे कि अभी रोहित शर्मा या विराट कोहली जब भी आने वाले 3-4 साल बाद जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये बंदा आएगा जो हमें थोड़ा मतलब एक इस पे ये था कि हाँ ये बंदा आएगा और ओडीआईज में अच्छा करेगा। मगर इसका क्या ऐसा मसला है कि ये बंदा T20 में इतना बेहतरीन खेल रहा है, मगर उस हिसाब से वो वनडे का गेम क्यों नहीं क्रैक कर पा रहा है? मतलब आपके हिसाब से, जो आपकी सख्त निगाह है उसके हिसाब से, आप क्या सोचते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहा है ये क्रैक? तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई और वसे भाई का। जी जनाब, मैं बताता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के पास ऐसा प्लेयर क्यों नहीं आता रेंज वाला। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट तो अच्छी हो खराब हो, डिपार्टमेंट बंद हो जाए खुले हो, चल रही है। बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आप ऐसी विकेट्स देंगे कि उस पर सारे शॉट अगले कदम पर ही होंगे, पिछले कदम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्लेयर उस टाइप के प्रोड्यूस नहीं होंगे। और फिर ये वाली सोच भी नहीं होती डोमेस्टिक कोचिस की, या ये कह लें कि जो फेवरेटिज्म है, ये इसकी शुरुआत ही किसी भी जगह के डोमेस्टिक से होती है। तो इसलिए शायद इस तरह के प्लेयर्स आ ही नहीं पाते, कि हम यही नहीं जांचते कि पुल वाले प्लेयर्स हम लाएं जो पिछले कदम पे अच्छा खेलते हो, शार्प पीछे जाते हो, फीट में बड़े तेज हो। अब आ जाएं सूर्या पर। तो यार सूर्या कुमार यादव असल में होता ये है कि जब आप 4-6-8 दफा फेल हो जाते हैं किसी फॉर्मेट को खेल के, तो आप वजह ढूंढने लग जाते हैं। अच्छा, मैंने पहले शुरू में ही बताया है सूर्या के बारे में कि वो वनडे में आ रहा है ना, तो वो अपना शॉट ब्लॉक कर देता है शुरू में। अभी परसों देखें, बांग्लादेश के खिलाफ भी देखें परसों, तो उसने काफी वक्त लिया। वरना T20 का जैसा भी विकेट हो, सूर्या अपने शॉट शुरू से खेलता है। मेरा मानना है कि जिस दिन उसने पहली 10 गेंदों पे 15 से 20 रन कर दिए, तो उसको वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और वो उसको T20 ही उसको अपने गेम पे रहना चाहिए। ऐसे लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है इनके गेम में। मेरा ये सवाल भी है, जैसे कि आज रोहित ने बोला है ना कि अश्विन भी लाइन पे है मेरे साथ, तो शार्दुल की जगह क्या हम समी को खिला के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अश्विन को लाइन में रखने के लिए? शार्दुल जैसे शार्दुल की जगह बनती है, तो उसकी जगह अश्विन को खिला सकते हैं ना प्रॉपर बैटर के तौर पे? नहीं नहीं, बैटर ये अश्विन भाई, वो फॉर्मेशन होती है। अगर आप स्पिनिंग ऑलराउंडर खिलाएंगे, तो जैसे एक मैच में इंडिया ने शार्दुल खिलाया और स्पिन होने लगी विकेट तो अक्षर खिलाया, तो ये तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा मामला। ठीक है जी, क्योंकि पांड्या तैयार है भाई, पांड्या 6-8 ओवर 10 ओवर में तैयार लग रहा है इस वक्त अभी फिलहाल। हाँ ये वो प्लस तो पॉइंट है है, खैर। वर्ल्ड कप में ये प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है सर। और दूसरा थोड़ा सा लगता है कि सैमसन के साथ थोड़ा अनफेयर लगता है हमें, काफी टाइम से वेट करने से मौके मिलते हैं, यूटिलाइज भी करता है, 150 बनाया उसने, फिर भी नहीं उस पर ध्यान देते इतना। अच्छा, हाँ जी। चले ठीक है।
चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। ये अहमद साहब। वासे भाई, मैंने पूछना था आपसे कि विलियमसन की फिटनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, कितने को मैच वो खेल पाएगा? और कितने एक खेल और सवाल पाएगा? ये करना था ये कि तो मैं वो डॉक्टर थोड़ी हूँ। नहीं, मतलब वैसे ही आपको देख के क्या लगता है कितने को यार मैच अगर खेल वो पाएगा उसने फिटनेस फैसला पे? किया है कि उसे मेडिकल बोर्ड ने उसके फिट करा दिया, जब भी तो वो वर्ल्ड कप में है। हाँ जी, चलें, बस यही सवाल था। और दूसरा पूछो, दूसरा पूछो। और दूसरा ये पूछना था कि आपके ख्याल से बवूमा बेहतर कप्तान है या फिर मार्करम? अच्छा, 2 मैच जीत गए इसलिए। बबूमा भी अच्छा कप्तान है, मार्करम भी अच्छा कप्तान है, दोनों अच्छे कप्तान है, लेकिन हक बबूमा का है क्योंकि बबूमा को बनाया आपने। बबूमा भी फ्रंट से लीड करता है। मार्करम की फॉर्म गई हुई थी, वापस आई है, अच्छे टाइम पर आई है। मैचेस में 2 अच्छा खेला, पिछले मैच में बढ़िया खेला कमबैक में। तो कहने की बात यह है कि मुझे तो मार्करम एज प्लेयर मैं उसे बड़ा हाईली रिगार्ड है उसके लिए मेरा, और रेट भी बहुत करता हूँ कि उसके पास सारे शॉट्स हैं। लेकिन आई थिंक के मार्करम को देखें, अगर आप आईपीएल देखें तो सनराइजर्स उसकी कप्तानी में बहुत बुरा खेली। इसी तरह साउथ अफ्रीका की भी जो उसने ओवरऑल कप्तानी जब जब की, बहुत अच्छे नताइज नहीं आए। लेकिन आई थिंक के अगर मार्करम, मिलर वगैरह बबूमा को सपोर्ट करें तो साउथ अफ्रीका विल डेफिनेटली बी द फोर्स टू रेकन विद। बहुत मुझे बढ़िया साइट लगती है, सब कुछ मौजूद है इनके पास। लेफ्ट आर्म पेसर है मार्को येंसन, राइट आर्म है, ठीक है मेरे व्यूज हैं कि, और स्टैट्स भी बताएंगे कि रबाडा वगैरह ऑफ लेट रन्स लीक करते हैं। नोकिया की फिटनेस मसला है, बट दे स्टिल हैव लुंगी एनगीडी एंड दैट न्यू बॉय। तजुर्बा नहीं है, मार भी लगेगी इंडिया में, आसान नहीं होगा उसके लिए। जेराल्ड कोटजे की बात कर रहा हूँ, 145 पे आउट स्विंग करता है। लेकिन देखें, बड़े बड़े बॉलर जिनको आप इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में इस वक्त जज कर रहे हैं, वो इंडिया में आएंगे तो उनका नेचुरल जरूर किल हो जाएगा। जो एक बेसिक होती है ना इंस्टिंक्ट के, यार वो ये करता है। क्योंकि इंडिया में आकर आपको इंडियन स्टाइल की बॉलिंग करनी पड़ती है और सीखनी पड़ती है, बड़ी जल्दी खुद को जो है ना वो लाना पड़ता है इस तरफ। ठीक है, थैंक यू वासे भाई। थैंक यू सो मच भाई। जी वासे भाई, एक क्वेश्चन मेरा और था आपसे कि अगर मैं आप इस पाकिस्तानी की ओपनिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ ना कि पाकिस्तान टीम की ओपनिंग थोड़ी वो एक तो स्ट्राइक रेट बहुत कम रहता है शुरू के 15 ओवर्स में उनका, और थोड़ा डर के खेलते हैं एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। ठीक है भाई, बात यह है कि एक होता है नया बॉल का प्रेशर जो हमेशा आपके जहन पे रहता है, एक होता है गेम प्लान जो टीम मैनेजमेंट देती है। आई थिंक कि जो हमारा ये लास्ट ओपनिंग पेयर चल रहा है फखर का और इमाम का, इसमें मैंने ये नोटिस किया कि इमाम को ये गेम प्लान दिया जाता है कि तुमने विकेट पर स्टे करना है। हालांकि मेरी नजर में ये गलत है। टेक्निकली साउंड बैट्समैन के दिमाग में अगर आप ये डालेंगे, इमाम टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है, लेकिन ठीक है खेलता वो देखकर है, आखिरी मूवमेंट तक कोशिश उसकी यही होती है कि साउंड रहे जितनी भी उसकी टेक्निक है। लेकिन बात यह है कि यार कहीं ना कहीं आप कुछ वेवर्ड डिलीवरीज को भी माफ कर देते हैं। कुछ गेंदें, काफी ज्यादा गेंदें जो परसेंटेज है मैंने देखी है हाफ वॉलीज वगैरह की, कि जो फील्डर्स के हाथ में जाती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मैं अपने ही प्लेयर्स की देखता हूँ, अपने ही टॉप ऑर्डर की। यानी कि टॉप ऑर्डर पूरा जो कहलाता है वो 1 2 3 कहलाता है। अगर आप क्रिकेट की टर्म में लेना कि टॉप ऑर्डर क्या होता है, वो 1 2 3 नंबर का बैटर भी टॉप ऑर्डर होता है। तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि जब भी, या चाहे T20 ले लो चाहे ओडीआई ले लो, T20 में भी अगर पाकिस्तान को मैक्सिमम टारगेट 160 170 के अराउंड दे जाए तो वो थोड़े वो हो जाते हैं, मतलब कि हमें लगता है कि वो नहीं चेस कर पाएंगे। सिमिलरली फॉर द वनडे इफ वी गिव देम लाइक 275 और 280, हमें ये लगता है कि ये नहीं चेस कर सकते। हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि देखिए जब रेंज ऑफ स्ट्रोक्स की कमी हो और आपके दिल में खौफ भी हो अपने रन्स ना बने तो कुछ होगा, तो ये वाली इनसिक्योरिटीज हो तो आप रेंज को बेहतर नहीं कर पाते। जब रेंज को बेहतर नहीं कर पाते तो बड़े टारगेट्स जब आपको नजर आ जाए और कंपेटिटिव बॉलिंग जो विकेट के एक तरफ हो रही हो फील्ड लेके, तो और लेंथ अच्छी हो, तो उस पर फिर आप चांसेस लेते हुए भी डरते हैं, और अगर लेते हैं तो आपका रेंज नहीं होता। क्योंकि अच्छी बॉल को आजकल दुनिया के अच्छे सारे ही
टीमों में ऐसे बल्लेबाज हैं टॉप 4 क्या टॉप 6-7 तक, कि जो अच्छी गेंद पे चौका मार देते हैं। ये चीज जो है आप थोड़ी सी कमी हम हमारी बैटिंग लाइनअप में देखते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। कोई और भाई, हसन का ले लें, हसन का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई, एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। सर, माय क्वेश्चन फॉर यू इज कि जब श्रेयास अय्यर फिट हो जाएंगे तो जी वो जी। किसकी जगह ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आएंगे और वर्ल्ड कप में कौन उनको जगह देगा? और माय सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पाकिस्तान टीम। हु डू यू थिंक इज द बेस्ट fit after Rizwan as a wicket keeper in Indian conditions? Thank you, वासिफ भाई। ओके, देखिए पहले मैं आपके दूसरे सवाल को ले लेता हूँ, फिर अय्यर पे आता हूँ। देखिए अब मुझे समझिएगा, देखिए भाई, जब भी आप मेगा इवेंट में एंटर होते हैं तो आप डायरेक्ट किसी नए लड़के को तो खिलाते नहीं है। बहुत से लोग ये बातें करते हैं और प्लेयर्स के लिए भी कि वो फला नहीं हुआ तो फिर कौन। यार फिर कौन तो इन्होंने बनाया ही नहीं ना। हसीबुल्ला का डोमेस्टिक में लिस्ट ए में, यानी 50 ओवर के फॉर्मेट में लिस्ट ए क्रिकेट में उसका एवरेज 56 का है भाई पर इनिंग। और उसने 1-2 मैच पेशावर जल्मी से खेले हैं तो उसमें टैलेंट दुनिया को दिखा है। मुझे ये हमारी नाअहली है कि हम लोग लीग क्रिकेट का बताते हैं किसी प्लेयर के लिए, डोमेस्टिक क्योंकि लोग देखते ही नहीं है, टीवी पे पर ही नहीं आती, कोई फाइनल आ गया तो आ गया। भाई हसीबुल्ला बड़ा कॉम्पैक्ट और बड़ा कमाल का प्लेयर है, यंग है, उसको आपको नर्चर करने की जरूरत है और थी। अगर आप रिजवान को बिठाने या उसका बैकअप दिल से बनाने के पीछे होते, जो कि रिजवान खुद नहीं चाहता, तो वो आप हसीबुल्ला साहब को अब तक खिला रहे होते बैकअप में रख के कोई छोटे मोटे मैचेस। अब आप नेपाल पे भी रिजवान को खिलाते हैं, बाबर भी नहीं छोड़ते नेपाल, क्योंकि बाबर के रन्स नेपाल पे हैं। अब तो शायद बहुत से पाकिस्तान के लोगों में लाइक यू अब ये बात जोर पकड़ गई है ना कि नहीं यार हम लोग गलत नहीं कहते। भाई गलत कब तक, अगर गलत कहेंगे तो कब तक बर्दाश्त कर लोगे यार, कब तक, मतलब साबित ही हो रहा है ना। आखिर में लोग ये बातें करते हैं फला नहीं तो फला, फला नहीं तो फला। आप मुझे दो बातें बता दें जरा बिल्कुल, कि भाई अगर इनकी नीयत में रिजवान का बैकअप रखना थी, जैसे सरफराज को हटाने के लिए इन्होंने 2 विकेट कीपर इंडक्ट किए थे, फिर रोयल नजीर आज तक नजर नहीं आता, तो ये हसीबुल्ला को अब तक कैरी करना शुरू कर देते। इन्होंने जान के हारिस को रखा है, जो इन्हें पता है कि वो रिजवान की वनडे में जगह ही नहीं ले सकेगा, उसे वनडे क्रिकेट का पता ही नहीं है। और दूसरा आपका सवाल था श्रेयस अय्यर का। सर देखें वो 15 के स्क्वाड में है और इंडियन मैनेजमेंट, मैं अगर क्रिकेट की सेंस से बताऊं कि तो वो ये है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट जो है भाई वो हर हाल में बताएगी आपको, वो वक्त पर बताएगी यकीनन कि किस विकेट पे कौन खेलेगा। 2 विकेट कीपर भी खेल सकते हैं। मैं केएल राहुल को आज भी विकेट कीपर तस्लीम नहीं करता। केएल राहुल पर उंगलियां बहुत उठ गई हैं पिछले 6-8 महीने में। उसकी फिटनेस से पहले उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी थोड़ी, तो उसको बचाने के लिए एज विकेट कीपर खिला देते हैं। अब ईशान ने भी रन्स कर दिए, तो आई थिंक कि अगर जरूरत पड़ी तो ये ईशान किशन को बाहर बिठा देंगे और दोनों को खिला लेंगे, या अय्यर को बाहर बिठा देंगे, पर केएल राहुल बाहर नहीं बैठेंगे ज्यादा ओकेजन्स पर, बड़े एनकाउंटर्स में। ये मेरा मानना है। थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबका बहुत शुक्रिया भाई, आपने बड़ा प्यार दिया, मोहब्बत दी। असल में बस दिल नहीं चाह रहा था यार, थकन भी हो जाती है कि रात को यूट्यूब पे लाइव बैठूं, फिर वो सेटअप की जगह पे ही सही लगता है, कुछ और मजबूरियां भी होती हैं। तो फिर मैंने कहा कल ही बैठेंगे हम इकट्ठे इंशाल्लाह। कल दिन में जरूर शो देखिएगा। और आप में से जो भाई ऐसे हैं जो शो लगातार देखते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि यार इस मामले में हम जरा कमजोर हैं कि यार बहुत ज्यादा हर मीडियम पर, तो आपको पता होगा कहाँ पर क्रिकेट के और स्पोर्ट्स के ग्रुप्स हैं ज्यादा तादाद में, जिन जिन सोशल मीडियम्स पर, तो वहां पर आप जरूर शेयर कीजिए हमारा चैनल। तो आपसे गुजारिश है, तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। और चैनल बड़ा सिंपल है, आपको पता है, उसकी HTTP भी है और www.youtube.com/c/वासे हबीब, ये उसका लिंक है। बाकी हमारा प्रोग्राम नेम है क्रिकेट बारबेक्यू विद वासे हनीफी, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जिंदगी ने वफा की तो जल्दी मुलाकात करें।